both We're will just start now. waiting for the recording to start. Yeah, it's on now. Greetings, delegates. We welcome you all to the 8th edition of the Novices Summit, an organization trusted for its quality since the past 5 years. As promised, we will be delivering our 3 plus 1 training session. Before we start with the session, we have few important announcements to share with you. Be very active on your email. We constantly mail updates there. You can also follow our Instagram at the for updates. Make sure you all have joined WhatsApp community and Telegram lobbying group. Link for both has been made. Background guides will be made to you 10 days prior to the event. Itinerary and dress code will be released 3 to 5 days prior. But keep ready your Indian and Western formals. If you have doubts, you can reply to messages on community and your doubts will be answered in 24 hours. We'll be sending a message for the same every day till the conference. These sessions are being recorded. Recordings will be shared after all the sessions are over. Now, it is time to commence the session covering basics of the United Nations and Model United Nations procedure. For this session, we have with us our founder, Mrs. Kashish Gangar, who has been a mentor to more than 10,000 students with 9 years of experience and 230 MUN conferences. Under beginners friendly approach, she is indeed the ideal mentor. Let's welcome ma'am. Thank you so much, Karthik, for that introduction. You can stop this picture now because I have my material to be shared. I hope I'm both audible and visible. Okay, thank you. I think my network is also a little problematic, so it feels like I'm. I think Karthik, if at any time my voice glitches, please let me know. Same as with you, Kimaya, so that I can, look at my network. Also, I would appreciate if all of you could turn on your videos so I could see you. Also, Neetu Chakrabarti, I can see you've been raising your hand for quite some time. So, can you please, we have one option here. Go on tools, and there is an option for question and answer. Okay. So, in that question and answer option, you can put whatever questions or doubts, whatever you have. Okay. If I'm audible, give me a thumbs up. Everybody. Amazing, amazing. Okay. So usually what happens is, the mentors who take up these sessions, what they do is they often bring pre-existing PPTs, okay, and then they read out from that, and it becomes hard for you people to catch up sometimes. So what I have not prepared any PPT, or I'm not using my previous written, documents. What I will do is I will share a blank document and we will together make notes about everything. Okay. So this is the session schedule. From here onwards, I will start with whatever we discussed today so that you and I are together working and together making notes. ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मैम 2 मिनट अभी तक हमने नोट डाउन नहीं करा है. Okay. So that is how we will go about it. What I'll do is once I explain any topic, I will ask you to, give me a thumbs up if it is clear. And if you have a doubt, you can put it in the Q&A option, okay? And I will read that. Okay, I think there are few more people joining. UN वाले बच्चे हमेशा late करते हैं. Indian committee में start हो गए. I'm sorry to interrupt, but how long this session will continue? I have tuitions. Okay, this session will go on till approximately 9:40-ish. Okay. So if you have tuitions, you can leave in between and you can refer to the recorded sessions. Okay. There are so many people yet to admit. I'll just log the meeting in next 5 minutes. Fatima, you can also put whatever question you have in the question option, and I will read that and answer. Okay. Fidmat Fatima. Midhat Fatima. I'm sorry about the pronunciation. Really sorry. Okay.
Now I will start with the session, okay? But before I go on with the session and tell you about everything and all of that, I really want to, you know, introduce myself to you, although they have already done it. So my name is Kashish Kumar. I run this happy place called the Novices. Since 2020, it's been 5 years. This is our 5th year of the organization. Apart from that, I am studying to become a clinical psychologist. I am in second year of my master's at National Forensic Sciences University, Central Campus, Gandhinagar. I was All India rank 23. In school, I used to play chess. I was national level chess player and captain for Delhi team for 4 years in the under 19 category. And apart from that, we as novices have worked with multiple schools. So I am also, I have also gotten this privilege to address multiple students. I've trained a good 10,000, 12,000 students across the country with more than 230 MUs that I've done, which was already spoken here. But you do not need to be intimidated, okay? Because we all start small. I went to my first MUN and I had no idea what this world was, honestly. Okay. Yes, recording will be sent, Stuti, don't worry. Okay. I had no idea what this world is, what these MUNs are. I had literally no idea. And I was so confused. And then if you see me today, I am not really afraid. अभी मैं पहले prepare भी बहुत बार ऐसा होता है, time नहीं मिलता है, we prepare on the day in the morning. So that happens a lot of time with all of us, okay? So इसलिए डरना नहीं है. It could be a place wherein you find a lot of intellectual simulation. It could be a place wherein you will find very good friends. It will be a place where you'll find people who, will help you somewhere. Just say, for example, there are a lot of friends who have good contacts, who have good opportunities. So I made a friend in MUNs because of whom I have received the opportunity to go to United Nations. Okay? I couldn't because of a lot of reasons, but then I have that opportunity available for me. So that happens. Okay. Anand is very happy today. What did your mom cook today? Something nice, I think, huh? Rajma chawal or something that is so happy. Okay. Yes. Chalo. Can we start then? Give me a thumbs up, everybody. डरना नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल टर्म्स लगेंगे, बट डरना नहीं है, ओके? कुछ भी नहीं समझ आता है, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन 10 टाइम्स. 3 सेशंस है, इसके बाद एक डाउट सेशन भी होगा, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है हमें. या एंड प्लीज अगर हो सके तो आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए. आई वुड लव टू सी योर फेसेस. नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, ओके? I want to share a concern that many people believe in or access their email when I'm using my dad email. So my humble request is, yeah, we have shared it on WhatsApp group also. Don't worry, okay? The link is in WhatsApp community also. Don't worry. ओके अब मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के अभी मैसेजेस नहीं देख पाऊंगी. इन बिटवीन आई विल कम हियर एंड आई विल सी द सेशन. ओके आरव, आई थिंक दिस सेशन इज फॉर लर्निंग समथिंग. आई नो आपने पहली बार इमोजीज देखे हैं, बट अभी लेट्स लर्न. ओके, नाउ टेक आउट योर नोटबुक्स एवरीबॉडी. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके, एज ह्यूमंस व्हाट डू यू थिंक आर योर बेसिक नीड्स? क्या चाहिए होता है हमें लाइफ में? ठीक है, एज ह्यूमंस हम सब चाहते हैं, ठीक है, कि हम लोगों का देयर आर पीपल हु लव अस. ठीक है, ह्यूमंस वांट पीपल टू लव देम. दैट इज वी वांट अफिलिएशन, कि हमसे लोग कनेक्टेड हों. देन वी वांट टू अचीव समथिंग. ठीक है, आप सब इस सेशन में आए हो बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ यू वांट टू विन, राइट? सो अचीवमेंट. एंड एट द सेम टाइम वी ऑल वांट पावर. अभी ऐसा होता है ना एट आवर होम्स, व्हाट हैपेंस इज कि अगर हमारे सिबलिंग को पेरेंट्स ने उसकी बात सुन ली और हमारी नहीं सुनी तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत पावरलेस फील होता है, राइट? ठीक है, या फिर अगर आप किसी ग्रुप में हैं एंड ग्रुप में आपकी बात की वैल्यू नहीं की जा रही है, आप जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, राइट? These are basic needs that we all as humans have, right? Now, when you look at another aspect of us as humans, we also want to be superior. All of us want to be superior. We want to be better than everybody. सब चाहते हैं. कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि वो सुपीरियर बने? ऐसा कोई नहीं होगा, राइट? एवरीबडी वांट्स कि हम सबसे बेटर करें लाइफ में, राइट? सो एज ह्यूमंस हैव दीज नीड्स, वी ऑल हैव अ टेंडेंसी टू फाइट. ठीक है, हम क्यों लड़ते हैं? अगर हमारी अफिलिएशन है, somebody is your best friend और कोई आपके बेस्ट फ्रेंड किसी और से ज्यादा क्लोज है, तो आपको लग रहा है मेरी अफिलिएशन हो रही है, सो यू फाइट.
अगर आप कहीं पे एक कंपटीशन में जा रहे हैं और आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जा रहा है, आपको अचीवमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यू फाइट। या स्कूल में ऐसा बहुत बार हम ट्रेंड देखते हैं ना, दैट टीचर्स कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही यू नो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो हम वी फाइट बिकॉज हम वी कैन ऑल्सो अचीव बट वी आर नॉट गेटिंग दी अपॉर्चुनिटी। सेम एज विद पावर, अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमारे हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, वी डू फाइट अगेन हियर, राइट? So these are the things that happen with all of us as humans. It's not me, you, everybody. And at the end, all of us want to have some control. ठीक है? अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, बट जो साथ साथ जो लोग कंट्रीज को रूल करते हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ये लोग भी तो ह्यूमंस हैं, इनमें भी ये सब नीड्स होंगी. दे वुड ऑल्सो वांट टू हैव अफिलिएशन, अचीवमेंट, पावर. दे वांट टू फील सुपीरियर एज वेल, राइट? That is why when these people are interacting with one another, there are conflicts. Now you'll ask me कि मैम why they interact? ठीक है? Because geography की 9th class की book में लिखा जाता है scarcity of resources, because resources are limited. ठीक है? अब resources limited है. There are as of now 193 plus 2 countries recognized by United Nations. ठीक है? 193 countries हैं और 2 observers हैं. तो ये जो 193 countries हैं, these nations are not exact copy of one another. एक country में maybe coal ज्यादा है, दूसरी में mineral ज्यादा है, तीसरी में maybe vegetation better है, एक में spices better है. So you know it's different in every nation. And all the countries want resources, so they have to interact with one another for trade, right? That is why, क्योंकि resources limited हैं, countries आपस में interact करते हैं, ठीक है? And also to have affiliation, to have countries supporting them. इसी चक्कर में जब the need for power and to be superior dominate करती है, इसी चक्कर में होती हैं conflicts, ठीक है? Conflicts होती है. अब कॉन्फ्लिक्ट जब हमारे बीच में होती है तो हम उसे लड़ाइयां बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं. बट व्हेन इट हैपेंस बिटवीन नेशंस, देन इट बिकम्स वॉर्स. ठीक है? अब वॉर्स भी मल्टीपल टाइप्स की होते हैं, बट वी विल लुक एट 2 ब्रॉड कैटेगरीज. ठीक है? मेजर कैटेगरीज. पहला है बायलेटरल वॉर एंड दूसरा है आपका वर्ल्ड वॉर. ठीक है? अब जो बायलेटरल वॉर होता है, दैट मीन्स देयर आर ओके. अभी आई थिंक आई विल एक्सप्लोर दिस जी मीट का एक ऑप्शन पोल वाला, एंड आई विल गिव यू अ पोल. ठीक है? गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट चेक हाउ इट इज डन. या ओके, बायलेटरल वॉर में कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं? आप ये ऑप्शंस ये रहे चैट बॉक्स में. ठीक है? See, there is a poll in the chat box. You all can reply or you all can vote. Bilateral war में आपके अकॉर्डिंग कितनी कंट्रीज हैं? Can you all see the poll? Give me a thumbs up. Because I can't. ये नहीं हो रहा? Okay, नहीं दिख रहा? ओ, अब देखो, अब आ गया. Check now. वोट करो. ओके, 5 को भी ओके. देखो, जब हम टर्म बाय यूज करते हैं, ठीक है, तो बाय मीन्स 2. ठीक है? आई जस्ट एंड दिस पोल नाउ. तो बायलेटरल वॉर में देयर आर 2 कंट्रीज इन्वॉल्व. ठीक है? और वहीं वर्ल्ड वॉर में देयर आर मोर देन 2 कंट्रीज इन्वॉल्व. इट कुड बी एनी नंबर, 3, 4, 5, 7, एनीथिंग. ठीक है? अंश, आपको क्या पोल नहीं आ रहा है? तो बाकी लोगों को आ गया, क्योंकि आई थिंक 200 पीपल हैव वोटेड. अब तो मैंने बंद कर दिया पोल को. ठीक है? बट या इट्स ओके, नहीं भी वोट कर पा रहे हो, इट्स फाइन, इतना कुछ बड़ा नहीं है. ठीक है? अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर की. तो टेल मी, आपके हिसाब से कितनी वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं? ठीक है? चलो, अगेन मैंने पोल डाला है. हाउ मेनी वर्ल्ड वॉर्स हैव टेकन प्लेस सो फार? 1 मिनट में मैं बंद कर दूंगी. ठीक है? टूल सेक्शन में जाइए सब लोग, और आपको सबको पोल मिल जाएगा. इतने सारे वोट्स आ भी रहे हैं मुझे. ओके, जल्दी मैं क्लोज करने वाली हूँ. मुझे बहुत मजा आ रहा है ये सब करने में. आई थिंक मानित को भी आ रहा है. मानित सो हैप्पी. हृदय, सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग हृदय?
I'm saying kindly stop reacting because Yeah, it's okay, let them enjoy, I don't mind. um But yeah, if you try to interrupt and do too much, जैसे मानित और आरव बहुत कर रहे हैं, we will remove you from the meeting because you have to be disciplined here, right? It's an academic simulation. Okay. So there are 151 votes that says two world wars, and there are 22 votes which says three world wars. Okay. So the right answer is there have been two world wars so far. Okay. Now let's look at world wars. Okay. Let's start with World War One. Okay. तो देखो, जब वर्ल्ड वॉर होती है या कोई भी वॉर होती है, उसके क्या बेसिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लडशेड, ठीक है, देयर आर इकोनॉमिक लॉसेस, देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, इसके अलावा रेगुलर फंक्शनिंग डिसरप्ट हो जाती है, ठीक है। रेगुलर फंक्शनिंग कंट्री की कैसे डिसरप्ट हो जाती है? देखो, फॉर इंस्टेंस if it's your first time here and you don't know how to prepare speech, you don't need to worry. In the upcoming sessions, I will train you for everything. Okay. When I went to the community, I tried to rejoin email, but it says, okay, we can solve these issues at the end. Okay. Abhi kya karte hain? Abhi let's stick to what I'm training you about. Okay. And uske baad ye additional doubts hai, ye hum at the end of the session lenge. Ki Maya, you want to say something? हाँ जी दी, एक बार अपना कैमरा ऑन कर लोगे प्लीज, यू नॉट विजिबल एट ऑल. Yeah, I have turned it off because of the network, but I'll turn it on for 5 minutes if you want. Okay. Sure, Yeah. thank you. So World War One में there were a lot of economic losses, political instability, a lot of people dying. Right now, idea of women working and women being educated is very new. ठीक है? तो उस time पे males were the sole earners of the family. Right? Now, when these male members were sole earners, and imagine they died in the World War, then what happens to the family? Women and children are pushed into trafficking. ठीक है? Women are pushed into professions like prostitution, children are trafficked, their organs are sold. ठीक है? There is poverty if in case such heinous consequences don't happen, right? So that is why the international community decided that we will try to bring peace in the world. But remember one thing, जो first world war हुआ था, उसमें approximately 1 crore people died. Now we live in a country like India, जहां पर population is 140 crore plus. ठीक है, so for us maybe 1 crore is not that big of a number, but for us also it is honestly. आप COVID की बात करेंगे, so we all knew at least one person who died, right? Or some of us have also lost people very close to us. And that time when 20 lakh people were dying, there was so much of panic in the public. Okay, people were so anxious. ठीक है, अब आप इमेजिन करो 1 crore, उससे 5 times ज्यादा people are dying. So how harsh it is, right? ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी और जितने भी मेजर लीडर्स थे, they decided that we will come up with something concrete. So they came up with this organization called League of Nations. ठीक है, लीग ऑफ नेशंस का काम था टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. ठीक है, now League of Nations turned out to be a failure. There were a lot of reasons, fundamental reasons, but the major reason why League of Nations was a failure was because it could not meet its very objective. League of Nations तो peace maintain करने के लिए बना था, but they couldn't. क्यों? क्योंकि World War II happened, right? Now World War II में this number increased into by many folds. Okay, so basically ये जो 1 to 2 crore था, this increased and became 7 to 8 crores now, which is again very very big number. ठीक है, again bloodshed, economic losses, political instability. और imagine करिए, आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि we will allocate 100 rupees for your education every month. ठीक है, पर अभी चल रही है वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो क्या वो 100 rupees आपको मिलेंगे या वो वॉर में डाइवर्ट होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो वॉर में डाइवर्ट होंगे, क्योंकि सेफ्टी प्राइमरी गोल है, राइट? सो एवरीडे फंक्शनिंग भी तो डिसरप्ट हो रही है कंट्री की. अभी जैसे रिसेंटली जब ये इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस स्टार्ट हुए थे,
I stay in Gujarat. My home is in Delhi, but my college is in Gujarat. So जो यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे एग्जाम चल रहे थे सबने ऑनलाइन कर दिए थे या सब बच्चों को घर भेज दिया गया था, एंड वी पीपल वर स्टक क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, क्योंकि यहाँ नियर बाय भी एक अटैक हुआ था. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन. नाउ वर्ल्ड वॉर में आप मान लो कि ये 10x हो रहा है. ठीक है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस. कब बनी यूनाइटेड नेशंस? इसमें okay, there are more people who want to join the session. Wow. Team, please let them in, okay, because I'm on a different screen. So जो United Nations है वो बना 24th of October को 1945. इसको आज हम UN डे करके सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. अब यूनाइटेड नेशंस क्या है? यूनाइटेड नेशंस को हम कैटेगराइज करते हैं एज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट्स ऑफ मल्टीपल कंट्रीज आर इन्वॉल्व. आप सभी को यूपीएससी के बारे में पता है? गिव मी अ थम्स अप. सबको पता है यूपीएससी क्या है? यस. यूपीएससी के पेपर में एक कैटेगरी होती है, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की, आईएफएस ऑफिसर्स. क्या है? तो जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं क्या काम है इनका? दे सिट इन आवर एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, and when they become senior in their term of work, they also represent India in the United Nations. ठीक है. United Nations क्या है? एक ऐसी बॉडी है जहां पर all the countries send their representative so they can come together and deal with problems which are of global importance. ठीक है. अब आप ऐसे देखो, अगर ये बाउंड्री है, ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का. ठीक है. तो ऐसा तो है नहीं कि पॉल्यूशन अगर इस साइड है तो वो कहेगा कि मैं इस साइड नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट है. ठीक है. या द आइडिया ऑफ पेट्रियार्की एंड विमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ऐसा तो है नहीं सिर्फ इंडिया में है. इट इज प्रेजेंट अक्रॉस. जो बेस्ट कंट्री फॉर वुमेन है वो भी बेस्ट कंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे बिल्कुल इश्यूज नहीं है. वो बेस्ट कंट्री इसलिए क्योंकि वहां पे बाकी सबसे कम इश्यूज हैं. ठीक है. तो इश्यूज तो प्रेवलेंट हर जगह है, राइट? That is why United Nations में सारी कंट्रीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती हैं. They discuss multiple issues, they come up with these solutions, and then they document it. That is, ये सब चीजें written, they are written. ठीक है. And then they vote for it, they sign it, all of that. Okay. अब जब हम यूएन की बात करते हैं, अगर आपको यूएन कैसे हमारी कंट्री के साथ काम करता है ये समझना है तो इसके लिए मेरे पास एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एग्जांपल है. आरव, आनंद, लास्ट वार्निंग. आफ्टर दैट विल रिमूव यू बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टिंग एवरीबॉडी इन द सेशन. थैंक यू. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं व्हाट वाज आई सेइंग, या अबाउट यूनाइटेड नेशंस, हमारी गवर्नमेंट और कंट्रीज की रिलेशन, तो आप इसको पेरेंट्स टीचर मीटिंग से समझो. अभी आप समझो कि बच्चे जो है नोटोरियस बच्चे, ये है कंट्रीज, पेरेंट्स है गवर्नमेंट, ठीक है, और टीचर है यूनाइटेड नेशंस. तो एक पीटीएम होती है और वहां 3 पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चों को लेके और तीनों बच्चे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ठीक है. और जो टीचर है वो तीनों के पेरेंट्स को बोलती है कि आपके बच्चे बहुत नॉटी हैं, बहुत नोटोरियस हैं, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट. ठीक है. अब एक कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वहीं पे पिटाई शुरू कर देते हैं अपने बच्चे की कि तुमने हमारी नाक कटवा रखी है, ऐसे कैसे करा, वैसे कैसे करा, है ना. एक कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को ब्राइब करते हैं कि बेटा अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे इस सेशन में तो आपको सेशन एंड पे आईफोन मिल जाएगा लेटेस्ट. ठीक है. और तीसरी कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स वो होती है जो कुछ भी नहीं करते हैं. ठीक है. अब सेम होता है यूएन कंट्रीज और गवर्नमेंट्स के बीच में. यूएन सिर्फ एडवाइस करता है कंट्रीज को टू डू समथिंग. जैसे यूएन ने एडवाइस करा कि देयर मस्ट बी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14. ठीक है. अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने एक लॉ निकाला जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरीबडी बिलो 14. वहीं नॉर्वे ने अपना इक्वालिटी इन एजुकेशन करके एक एक्ट निकाला. वहीं कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और सम अफ्रीकन कंट्रीज जिनके पास फंड्स ही नहीं है, दे डिड नथिंग अबाउट इट. ठीक है. इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. तो सेम होता है कि यूएन एक्ट्स एज एन एडवाइजरी बॉडी जो एडवाइस करता है नेशंस को, एंड देन इट इज अपॉन द नेशंस वेदर और नॉट दे फॉलो जो यूएन ने बोला है, और करेंगे भी तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे. ठीक है. समझ आया?
अब एक चीज और जानते हैं यूएन के बारे में, ठीक है। यूएन एक तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यहाँ पर सारी कंट्रीज अपने एम्बेसडर्स भेजती हैं, और साथ साथ इट इज नॉट वन सिंगल बॉडी, इट्स नेटवर्क। आई टेल यू हाउ। अब आप लेट्स से पढ़ते हैं एबीसी पब्लिक स्कूल में। नाउ एबीसी पब्लिक स्कूल जो है उसमें एक इंग्लिश डिपार्टमेंट है, एक मैथ डिपार्टमेंट है, एक साइंस डिपार्टमेंट है। दे ऑल हैव देयर ओन वर्क टू डू, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम कम अंडर एबीसी पब्लिक स्कूल, राइट? Similarly, UN में there are multiple bodies who have their own work to do, but they all are part of United Nations. ठीक है, तो इसीलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं UNO, that is United Nations Organization. ठीक है, because there are multiple bodies that come under the UN. एक चीज और है, हर बॉडी का अपना एक डेजिग्नेटेड काम है, ठीक है। एवरी बॉडी हैज इट्स ओन पावर्स, इट्स फंक्शंस, इट्स जॉब टू डू। उसके लिए एक वर्ड होता है जो है मैंडेट, ठीक है। आप कोई भी MUN करते हैं, आपको कोई भी कमिटी अलॉट होती है, आप WHO में हो सकते हैं, 4C में हो सकते हैं, HCR में हो सकते हैं, CRPD में हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज मैंडेट ऑफ योर कमिटी। मैंडेट क्या है? पावर्स, फंक्शंस एंड jurisdiction ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। अब अगर एक बॉडी जो एनवायरनमेंट से डील करती है, आप उन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में यू कांट एक्सपेक्ट देम टू डू समथिंग, राइट? सो एवरीबॉडी हैज देयर ओन डेजिग्नेटेड जॉब टू। अब जब हम यूएन की बात करते हैं, देयर आर मल्टीपल बॉडीज, बट देयर आर 6 मेन बॉडीज जिन्हें हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। चलिए, when we talk about principal organs, there are 6 principal organs. We will talk about each one of them in very brief. आप खुद डिटेल में पढ़ सकते हैं। The reason why I am doing all of this in the session is because I want कि आपका पहले बेस फॉर्मेशन हो। हम सीधा अगर आपको आपकी MUN के बारे में बता देंगे तो you will not learn anything, right? तो इसलिए ये इलेबोरेटिव सेशन है, वरना ट्रेनिंग सेशन नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस में एक दिन का होकर डन हो जाता है। बट आई वांट कि हमारा बेस स्ट्रांग हो, तभी तो हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से, ठीक है। UN जनरल असेंबली, ठीक है। नाउ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पहले तो देयर आर 193 कंट्रीज जो होती हैं प्लस 2 ऑब्जर्वर्स। प्लस 2 ऑब्जर्वर्स कौन सी कंट्रीज हैं? एक तो है पैलेस्टीन, ठीक है, और दूसरी है वेटिकन सिटी, जिसका दूसरा नाम है होली सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो दे कैन पुट इट इन द क्वेश्चन, एंड नहीं तो गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई नो कि यहाँ तक सबको सब क्लियर है। ओके, आई जस्ट सी, ओके, आई एम गेटिंग थम्स अप, ठीक है, गुड। अभी तक तो ओके, देयर इज अ क्वेश्चन। फर्स्ट MUN हैव टोल्ड यू। What do you want me to repeat, Zion? If you could just tell me. अगर ऐसे कुछ रिपीट कराना हो, क्या रिलेटेबल हो गया है? ठीक है। Who's the even like who decides the final decision? So every committee has their own executive board members. This is a general UN session. तो जो हम प्रोसीजर्स आपको यहाँ कराएंगे ये सारी UN committees में सेम रहेगा, ठीक है। मैम, I want to ask, will the recorded session be shared? Yeah, it will be shared on WhatsApp. ठीक है। UNO पॉइंट रिपीट करना है तो बेसिकली UN एक स्टैंड अलोन बॉडी नहीं है, उसके अंडर देयर आर मल्टीपल बॉडी, ठीक है। जैसे आप में से कोई UN विमेन में होगा, कोई UN CSW में होगा, कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में होगा, कोई ह्यूमन राइट्स काउंसिल में होगा, राइट? सो दे आर डिफरेंट बॉडीज, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम कम अंडर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। मुस्कान इज, डिड यू रिकॉर्डेड सेशन का आई ऑलरेडी टोल्ड, आ जाएगा कम्युनिटी पे। व्हाट आर ऑब्जर्वर्स? ऑब्जर्वर्स क्या होता है? देखो, ये जो 193 कंट्रीज हैं ये रिकॉग्नाइज्ड हैं इन द यूनाइटेड नेशंस कि दे आर सॉवरेन नेशंस, बट 2 ऐसे एरियाज हैं जिन्हें एक कंट्री का स्टेटस नहीं मिला है। वो कौन से 2 एरियाज हैं? एक है पैलेस्टीन, उसका रीजन मेनली यही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका एरिया क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्टेड है। बट रिसेंटली अगर आप न्यूज सुनते हो तो आपको पता चला होगा कि रिसेंटली देयर हैज बीन अ रेजोल्यूशन ऑन ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और दूसरा है वेटिकन सिटी,
होली सी जिसका दूसरा नाम है। वेटिकन सिटी क्यों है? वेटिकन सिटी में आपको पता होगा कि पोप लिव्स, राइट? एंड वहां पर मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है वो पिलग्रिमेज वाली है, ठीक है? तो वो चेंज होती रहती है, देयर इज नो फिक्स पॉपुलेशन, ठीक है? Okay, so basically I mentioned that because women were because women were not able to earn, so they were trafficked, they were sold, ठीक है? And then they were used for, they were used as laborers, or they were used for maybe sex work, all of that, ठीक है? Recorded session will be shared after the session is done, okay, ma'am? And are there also given advices? Ma'am, I have gotten the country is Palestine. That is okay. There is no problem in having Palestine. Okay. No more doubts then. I'll move ahead. Okay. Fair. I'll move ahead now. First is United Nations General Assembly. All 193 countries as members with 2 observers, Palestine and Holy See. Holy See is your Vatican City. Okay. Moving on, UNGA can discuss any and every issue in the, across, okay? It could be related to environment, it could be related to economic issues, it could be related to wars, it could be related to women's rights, all of that. And it further has 6 committees. That is your homework. Tomorrow when we come, you all will tell me these 6 committees of the UN, okay? Next is UN Security Council. ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? I'll tell you why. It is very, very important body of the United Nations. Akshata, if you have a doubt, write it in the chat box, in the question section. I will read, okay? Security Council has firstly 10 plus 5 members, okay? Out of which 10 are non-permanent and 5 are permanent. I hope you all are noting all these things down. अब ये 5 permanent members क्यों हैं? They are 5 permanent because जब से Security Council बना है, they have been part of it. They were also founding members, and there are, you would have heard this as well, कि India was also offered to become one of the permanent members. But at that point in time, we had amazing relations with China. So India gave its seat to China because उस time पे एक slogan भी चलता था, एक quotation भी चलता था कि हिंदी चीनी भाई भाई. Now India desperately wants to become a permanent member at the United Nations, but China is also one of the major bloc why they can't now. Okay. There are other countries like Japan and Brazil who are also contesting for the same. Okay. अब ये जो 5 permanent members हैं, इनके पास एक special power होती है जिसे हम बोलते हैं veto power. Veto power क्या होती है कि if they say no to something, that means no. UN में हर चीज democratically होती है, मतलब every country votes and every vote has equal value. But Security Council में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो जब UN Security Council में अगर 14 members agree कर रहे हैं और इन 5 में से किसी भी एक कंट्री ने अपना वीटो पावर यूज कर लिया, उस केस में वो पर्टिकुलर डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता. और ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं? USA, United Kingdom, China, France, and Russia. Okay. These are the 5 permanent members of the United Nations. Okay. Next is your ECOSOC, Economic and Social Council. Now, this body deals with economic issues, social issues, and areas where they overlap. जैसे कि आप minorities की बात करते हैं, ठीक है? Minorities were discriminated everywhere. That is why they could not attain job earlier. That is why they are not economically well to do in a lot of sections, right? So यहाँ पर इकोनॉमिक इशू भी है, सोशल इशू भी है, और उन दोनों ने ओवरलैप करके माइनॉरिटीज की एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी कि एक प्रॉब्लमैटिक स्टेट है, ठीक है, राइट? तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, ECOSOC deals with them. Next up we have ICJ, ठीक है? ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अगर आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है अपने नेबर से, ठीक है,
तो आप कोर्ट जाएंगे, पुलिस जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, दैट इज हाउ इट हैपेंस। बट व्हाट इफ नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई? अब अगर रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट है तो ना रशियन लीडर वुड कम टू यूक्रेन के कोर्ट एंड फाइट द केस, एंड ना यूक्रेन वाले जाएंगे रशिया में एंड फाइट द केस। सो देयर मस्ट बी सम इंटरनेशनल बॉडी टू इट, राइट? सो इसीलिए आईसीजे होता है, ठीक है, जिसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग अभी अपने पास रखिएगा, ठीक है, या क्वेश्चंस में डाल दीजिएगा, एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ देम एट द एंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, आई थिंक आई मेस्ड अप विद द स्पेलिंग, या नो सही लिखा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल के आगे स्टार लगा देते हैं, स्टार इसलिए लगा देते हैं क्योंकि लिख लो सबसे पहले तो इट इज नो मोर फंक्शनल, ठीक है। अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल काम नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देयर वर 11 एरियाज विच वर वेरी सेंसिटिव एंड वर अंडर कॉलोनियल रूल, जैसे इंडिया थी ना ब्रिटेन के कॉलोनियल रूल के अंडर, ठीक है। तो उनकी ना सेल्फ गवर्नेंस थी और ना वहां पे इंडिपेंडेंस थी। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था टू हेल्प दीज 11 ट्रस्ट टेरिटरीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट। व्हेन द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी कॉल्ड पुलाओ इन 1994, उसको जब इंडिपेंडेंस मिल गई और उन्होंने अपनी सेल्फ गवर्नेंस स्टार्ट कर दी, उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नो मोर फंक्शनल, ये बॉडी काम नहीं करती है, ठीक है। एंड देन कम्स सेक्रेटेरिएट, ठीक है, आई जस्ट राइट सेक्रेटेरिएट। अब हम लोग यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसडर्स हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं। सो द सेक्रेटेरिएट लुक्स एट द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और सेक्रेटेरिएट के हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। ये है हमारे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। यहां तक किसी को डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में। अब हम यहाँ से MUN के प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। डाउट नहीं है तो गिव मी अ थम्स अप, डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में डालिए। ओके, ये सारे मैं टिक कर दूं क्वेश्चंस, मैंने आंसर कर दिए हैं। ओके, हाउ कैन आई नो विच कंट्री डिड आई गेट? आपको ईमेल आया होगा, प्लीज चेक दैट, ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम? डिफरेंट कमिटीज हैव डिफरेंट टॉपिक्स, सो आपको जो कमिटी है उसका टॉपिक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मच ड्यूरेशन इज दिस सेशन फॉर UNEP? दिस सेशन इज फॉर ऑल द UN कमिटीज, सो वी विल डू लाइक अभी नेक्स्ट 40-45 मिनट्स में हो जाएगा आई थिंक। व्हाट इज इंटर गवर्नमेंटल? इंटर गवर्नमेंटल होता है जब जैसे इंटर स्कूल इंटर क्लास कॉम्पिटिशन है ना, ऐसे इंटर गवर्नमेंटल में मल्टीपल गवर्नमेंट्स send their representative, they come together and they discuss global issues and solve them, okay. Is there a limit how many times veto powers can? No, there's nothing as such. Okay, full form of veto, there is no full form, it is veto in itself, the term is veto power. How exactly do we make position paper? Position paper का session होने वाला है on today is Monday, right? So on Wednesday the third session is documentation, तब हम आपको position paper बताएंगे अच्छे से। जवाहरलाल नेहरू गॉट 2 प्रपोजल्स, ठीक है, यस वेरी गुड। कौन है, किसने बताया हमें ये, ठीक है। तो प्रगति हैज टोल्ड दैट वी गॉट प्रपोजल्स बट ही डिनाइड बिकॉज़ चाइना के साथ रिलेशन खराब नहीं करनी थी, सो वी गिव चाइना द परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है। व्हाट इज इकोसॉक? इकोसॉक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो डील करता है इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम से, सोशल इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम से एंड एरियाज वेयर दे ओवरलैप, ठीक है। Is there any limit? No, there is no limit. I've already answered. ECOSOC I have just explained. Can you please tell the homework again? Yes, you will have to read about the 6 committees of the United Nations General Assembly and also read about mandate of your committee. ठीक है, सभी लोग आपको जो भी कमिटी अलॉट हुई है, WHO, CSW, HRC, HCR, CRPD, जो भी आपको बॉडी अलॉट हुई है उसका मैंडेट आप सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके आज के 2 होंगे एज ऑफ नाउ। No. India does not have veto. India wants veto.
India wants to be a permanent member. ICJ is International Court of Justice, which deals with, it acts like a world court. So अगर countries के बीच में कोई conflict है, तो it basically deals with that. How to join Telegram group? भव्य, आपको email पे link आया होगा Telegram group को, और अब तो हम लोग WhatsApp पे भी भेजना शुरू कर रहे हैं. Sent so many mails, you guys are still not joining. Please join. ठीक है. ICJ, okay. ICC अगर हम बात करते हैं और ICJ बात करते हैं, तो yes they are different. ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा या बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर बिगिनर्स. तो अगर आपको इस बारे में मेरे से डिस्कस करना है, तो मे बी इन द लास्ट डाउट सेशन वी कैन टेक दिस अप. ओके, आई विल डू द सेटिंग कि अनोनिमस मैसेज बंद हो जाए, क्योंकि आप लोग अनोनिमसली तंग कर रहे हैं मुझे. ठीक है. इज देयर एनी लिमिट टू यूज ऑफ वीटो पावर? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड नो. व्हाट इज सेक? सेक्रेटेरिएट इज द मैनेजरियल बॉडी, जैसे हम हैं यहाँ सेक्रेटेरिएट इस MUN के, तो इसी तरह द मैनेजरियल बॉडी. ओके. SEC and ECOSOC I have just explained again. Will it be possible to change my committee? आप मुझे कॉल करना, वैसे तो नहीं होगा. ठीक है. Is it not undemocratic for one country to? Yes, यही तो, that is why the structure of Security Council feels very unfair to a lot of countries. And अगर आप देखोगे तो इसमें अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है परमानेंट मेंबर्स में. ठीक है. तो it is unfair system. That is why countries are fighting to get permanent membership. This is my first MUN. Do we do this? आप अभी ये सेशन अटेंड करोगे 3 दिन का, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना है. ओके. Security Council deals with any conflict security issues that happens. ठीक है. It has 15 members, 5 permanent, 10 non-permanent. 10 non-permanent change होते रहते हैं. India has been non-permanent. ठीक है. Could you please repeat why Trusteeship Council stop functioning? Yes. ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था कि वो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ इंडिपेंडेंस में हेल्प करे. द डे द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी कॉल्ड पुलाओ को अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1994 में, तब से उसने अपनी फंक्शनिंग सस्पेंड कर दी थी. UNGA का एजेंडा आपको ब्रोशर में या इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे सारे एजेंडास. ठीक है. डू वी डिबेट इन फेवर ऑफ द कंट्री? हाउ डू यू डिबेट? विल टॉक अबाउट दैट टुमारो. ओके मैम, कुड यू प्लीज रिपीट? अभी बताया ट्रस्टीशिप काउंसिल क्यों फंक्शनल नहीं है. पोजीशन पेपर ऑन द डे 3, या इट डज एग्जिस्ट एज पर UN, इट डज एग्जिस्ट, बस काम नहीं करता है. आई हैव एक्सप्लेन ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो रेपिटेड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं. टेलीग्राम ग्रुप को आल्सो आई हैव टोल्ड. आप इसके बाद मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर लेना अगर नहीं मिल रहा है. ठीक है. मैम, इफ UN कमिटी सो मच फंक्शन है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है. ऐशानी प्लीज टाइप कर दीजिए, आपका भी क्वेश्चन मैं देख लूंगी. ठीक है. कि अगर UN इतना ही फंक्शनल है तो वॉर्स क्यों हो रही है? वेरी नाइस एंड फनी पार्ट. सी, UN and these international bodies function on something called as international law. ठीक है. इसके बारे में बात करेंगे. तो एक सोचना लॉजिकली कि कौन इतना पावरफुल है कि वो एक कंट्री को पनिश कर दे फॉर देयर रॉन्ग एक्शंस सब्सटैंटिवली. मैक्सिमम क्या होता है, सैंक्शंस लगा देंगे, उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे. ठीक है. आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. हाउ टू प्रिपेयर स्पीच एंड ऑल ऑफ दैट तो अभी हम एंड में ही बताएंगे. ठीक है. ओके, नाउ आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड. पोजीशन पेपर हम डे 3 पे करेंगे. अभी जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वो समझो. अगर आप आगे का सोचोगे ना तो आप बहुत एंशियस हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे. अभी जो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. ओके, थैंक यू. हेड ऑफ सेक इज सेक्रेटरी जनरल. ठीक है. यस, टेलीग्राम ग्रुप इज नेसेसरी टू ज्वाइन गाइज. आई एम नॉट रीडिंग एनी क्वेश्चंस एनी मोर. ठीक है. अभी आई एम मूविंग अहेड इन द सेशन, बाद में हम करते हैं आगे डाउट्स. ठीक है. अभी आप लोग रुक जाइए क्वेश्चंस के लिए. ऑल्सो द सेक्रेटरी टीम, अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए आई हैव आंसर्ड ऑल मोस्ट ऑफ देम, तो भी सब डिलीट कर दो, बाद में एंड में लेंगे हम लोग. ठीक है. ओके, नाउ बात करते हैं हम MUN की, मॉडल यूनाइटेड नेशंस. ठीक है. MUN क्या है ये बात करते हैं. तो मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो है, इट इज अ कॉपी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. मतलब आपने वो एक मूवी देखी है जिसमें एक पर्सन को चांस मिलता है एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनने का, तो वो सब कुछ करते हैं जो चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, उनकी पावर्स है, राइट. सिमिलरली आप इमेजिन करिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है दैट यू लिव लाइफ ऑफ अ डिप्लोमैट. ठीक है. एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपके पास प्राइवेट जेट नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे, बाकी सब तो प्रिविलेजेस मिल ही रहे हैं. ठीक है. तो मॉडल यूनाइटेड नेशंस में यू पीपल, स्टूडेंट्स,
you represent countries like their representatives, and you discuss global issues and give your country's point of view on those global issues. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कमिटी में डिस्कस हो रहा है वाटर स्कैरसिटी और आपकी कंट्री है पाकिस्तान, सो आप बात वाटर स्कैरसिटी की करेंगे, बट यू विल ऑल्सो ब्रिंग पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस इशू. ठीक है? तो मॉडल यूनाइटेड नेशंस एक नॉर्मल डिबेट से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पीचेस नहीं, देयर आर अ लॉट मोर एलिमेंट्स टू इट, जो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे. तो देखो, अब हम कुछ भी करते हैं, मैं चेस खेलती थी या कोई रेस भागता है, हर किसी चीज के लिए रूल्स होते हैं. ठीक है? अब आप 60-70 लोग हैं, अगर एक रूल ही नहीं है कि कैसे स्पीच देनी है, क्या करना है, तो सब एक साथ बोलेंगे, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो पाएगा, राइट? तो इसीलिए एमयूएन्स में भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं. ठीक है? और जो हम लोग दिल्ली में मोस्टली फॉलो करते हैं वो है यूएनए यूएसए, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो एमयूएन के लिए प्रोसीजर्स दिए हैं, हम वो फॉलो करते हैं. ठीक है? अब आइए स्टार्ट करते हैं एमयूएन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स. फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज, जो आपकी क्लासरूम में भी होता है, रोल कॉल. ठीक है? रोल कॉल क्या है? अटेंडेंस है. रोल कॉल का क्या काम है? मार्क योर प्रेजेंस. ठीक है? और साथ ही साथ प्रेजेंस तो हमने मार्क करी, व्हाट एल्स? ठीक है? आप प्रेजेंस भी मार्क करते हैं, साथ में आप अपना स्टैंड बताते हैं. तो देखो क्या है, अब आप लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एम्बेसडर्स. ठीक है? आप आए हैं, अब आप गॉसिप करके तो नहीं चले जाएंगे ना कि अरे चाइना कितना एनोइंग है, यूएसए कितना प्रॉब्लमैटिक है, ऑल ऑफ दैट. ठीक है? ऑल ऑफ दैट. सो बेसिकली इसीलिए आप क्या करते हैं, आप जो भी डिस्कशन करते हो ना, एंड में दैट इज रिटन डाउन, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है? अब जैसे घर में आपने देखा होगा कि अगर आपने और आपकी बहन ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि तुम मेरी असाइनमेंट कर दो और मैं तुम्हारे लिए मैगी बनाऊं. ठीक है? या आप दोनों के बीच में डील हुई और आपको पता है कि अरे हमारे सिबलिंग्स है, ये तो बातों से मुकर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लेंगे और उनसे साइन करवा लेंगे. क्यों करवाते हो आप वो साइन? क्योंकि आपको पता है इससे आपके पास एक हार्डकोर रिटन प्रूफ है ना? सेम है कंट्रीज के साथ. कंट्रीज भी तो ऐसे डिनाई कर सकती है ना, जो भी उन्होंने यूएन में बड़े बड़े प्रोमिस करे. तो इसीलिए एमयूएन के एंड में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें जो भी सॉल्यूशन डिस्कस हुए हैं वो लिखे जाते हैं. तो जब आप रोल कॉल देते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही अपना डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका क्या वोट रहने वाला है, क्या आप वोट करने वाले हैं या आप नहीं करने वाले हैं, या आप अभी अनश्योर है, वो बताते हैं. तो हम रोल कॉल को दो तरीके से रिप्लाई करते हैं. पहला तरीका है प्रेजेंट. ठीक है? प्रेजेंट का मतलब है कि मैं या मेरी कंट्री, जो भी आपकी कंट्री है, आई एम हियर टुडे इन दिस कमिटी. ठीक है? एंड आई मे और मे नॉट वोट. ठीक है? मे और may not vote on the final document. ठीक है? और प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या है? दूसरा ऑप्शन है रिप्लाई करने का, प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब देखो, इसमें तो आपने अपने रोल कॉल में ही स्पेसिफाई कर दिया कि आप प्रेजेंट हो और आप वोट कर रहे हो. दैट मीन्स आप बोल रहे हो मैं आया हूं एंड आई विल वोट. ठीक है? तो जब आप बोलते हैं प्रेजेंट या प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों केसेस में आप अपनी प्रेजेंस तो मार्क करें. आयशा प्लीज क्वेश्चन में डाल दो जो भी आई मिस्ड योर क्वेश्चन, सो सॉरी. ठीक है? आप प्रेजेंट या प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों में ही अपनी प्रेजेंस तो मार्क कर रहे हैं कि ओके आई एम हियर एंड ऑल ऑफ दैट. बट जब आप प्रेजेंट बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें हमने जो भी डिस्कस करा है वो लिखा जाएगा, आई कैन वोट इन इट्स फेवर. ठीक है? और आई माइट वोट अगेंस्ट इट, और I might abstain. ठीक है? Abstain is what makes present and voting different. Abstain मतलब कि मैं वोट ही नहीं करूंगा या करूंगी. ठीक है? तो जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट में बनेगा, अगर आपने प्रेजेंट बोला है और आपको वो डॉक्यूमेंट पे वोट ही नहीं करना है, तो आप एब्सटेन कर सकते हो, यानी कि नॉट वोट एट ऑल. अब क्यों करते हैं हम एब्सटेन? देखो, दो कंट्रीज में लड़ाई होगी. दिस सेशन विल एंड इन हार्डली नेक्स्ट 25-30 मिनट्स. तो आई विल सजेस्ट कि आप सब ले लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मेरी भी 10 क्लासेस पड़ी है रिकॉर्डेड जो आज तक ली नहीं जा रही है. सो इट्स बेटर साथ साथ कर लो प्लीज. ठीक है? तो बेसिकली हम करते हैं, जैसे दो कंट्रीज की लड़ाई हुई है, कंट्री ए कंट्री बी,
अब जो कंट्री ए है वो मुझे वेजिटेबल्स दे रही है और कंट्री बी मुझे गन्स दे रही है या बॉम्ब्स दे रही है, लेट्स से। अब मेरे लिए बॉम्ब्स एंड गन्स भी जरूरी है वॉर्स के लिए और वेजिटेबल्स भी जरूरी है, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बॉम्ब खा लूं या फिर लड़ाई हो रही है तो ब्रिंजल फेंक के मारूं, आई कांट डू दैट, राइट। सो मुझे इन दोनों कंट्रीज से रिलेशन अच्छी मेंटेन करनी है। अब मैं किसी की भी एक की साइड लूंगी तो नुकसान तो मेरा ही है। अगर वेजिटेबल वाले की साइड ली तो गन्स वाले गुस्सा हो जाएंगे, गन्स वालों की साइड ली तो वेजिटेबल वाले गुस्सा हो जाएंगे। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, मैं एब्सटेन करूंगी, यानी कि आई विल नॉट वोट एट ऑल, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम एब्सटेन बोलते हैं जब हमें पता है कि हमारी कंट्री एक क्लियर साइड नहीं ले सकती है। जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, अब इंडिया नोस कि यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, वहां के पीपल आर डाइंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट इंडिया की रशिया से बहुत अच्छी रिलेशन है। तो इस सिनेरियो में इंडिया क्या करेगा, एब्सटेन करेगा, कि वोट ही नहीं करेगा, कि हम अपने ट्रबल में फंसे ही ना। जैसे बचपन में वो कुछ रिलेटिव्स हमें आके तंग करते थे ना कि मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो पापा से, तो हम जवाब ही नहीं देते थे क्योंकि पता है नुकसान तो हमारा होने वाला है, किसी का भी नाम ले लेंगे, ठीक है, दैट वे। समझ आया। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग की, तो आपका फाइनल रिस्पॉन्स टू द डॉक्यूमेंट होता है या तो फेवर या अगेंस्ट, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि आप अगर डे 1 पे प्रेजेंट बोल रहे हैं म्यून के, तो आप डे 2 पे प्रेजेंट एंड वोटिंग बोल सकते हो। बट अगर आपने डे 1 पे प्रेजेंट एंड वोटिंग बोला है तो आप उसे वापस प्रेजेंट में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया रोल। अब एक बात सुनिए, एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी काउंसिल ना, यूएन की हर बॉडी में हर चीज बहुत डेमोक्रेटिकली होती है, यानी कि एवरीबडी वोट्स एंड एवरी कंट्री के वोट की इक्वल वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर आपको कमेटी में एक ब्रेक भी करवाना होगा ना, तो भी आपको मेजोरिटी का वोट चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि मैंने कमेटी में प्रपोज करा कि लेट्स हैव अ ब्रेक, ठीक है। फिर सब वोट करेंगे, अगर मुझे वोट मिला ना मेजोरिटी का तो ही वो ब्रेक हो पाएगी। तो मुझे जो सबको कुछ भी करवाने के लिए जो मैं स्टेटमेंट यूज करूंगी उसे बोलते हैं हम मोशन, ठीक है। मोशन क्या है, सिंपल स्टेटमेंट्स टू प्रपोज एनीथिंग, ठीक है, स्टेटमेंट टू प्रपोज एनीथिंग। ठीक है, which is later on voted upon, ठीक है। अगेन आरव, आरव को रिमूव होना है फिर से, ठीक है, कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। चलो, ओके, मोशंस क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से चीजें, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं बचा है, अब बस हम डिबेट कैटेगराइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसके डाउट्स होंगे वो रुकेंगे, जिनके डाउट्स नहीं होंगे वो जा सकते हैं। बट कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें हम रिसर्च और हाउ टू राइट अ स्पीच डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं मोशंस की। मोशन सिंपल स्टेटमेंट है। अब पहला मोशन जो हम रेस करते हैं रोल कॉल के बाद वो होता है टू सेट अप द एजेंडा। सेटअप दी एजेंडा क्या है, फॉर एग्जाम्पल टीचर आई क्लास में, उन्होंने बोला कि बेटा आज हम चैप्टर 4 करेंगे, तो सब लोग चैप्टर 4 खोल लो बुक में। तो आपको पता है कि जो क्लास होने वाली है 1 घंटे की, इसमें चैप्टर 4 कराया जाएगा। यार मैंने इस मीटिंग का एजेंडा सेट करा था कि आज हम यूएन के बारे में पढ़ेंगे और एमयूएन के बारे में, तो ये मेरा एजेंडा हो गया। अब सिमिलरली आप एमयूएन में आज किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, आपकी कमेटी का एजेंडा क्या है जो आप लोगों को ऑलरेडी मिल रखा है, जिसको देख के ही आपने रजिस्टर करा होगा, दैट इज द एजेंडा दैट यू सेटअप, ठीक है। क्यों करते हैं हम ये एजेंडा सेटअप, क्योंकि 2 रीजंस। एक बॉडी मल्टीपल चीजें डिस्कस कर सकती है। अगर एक बॉडी है ऑन लेट्स से यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो वाटर स्कैर्सिटी भी डिस्कस कर सकती है और एयर पोल्यूशन भी डिस्कस कर सकती है। बट आपको आज स्पेसिफाई करना है कि आज एयर पोल्यूशन की बात होगी, दैट इज व्हाई यू सेट अप द एजेंडा टू डिसाइड व्हाट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है। एजेंडा सेटअप हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग डिबेट पे। तो जो डिबेट है हमारा एमयूएन में वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिबेट, ओके। फर्स्ट इज योर फॉर्मल डिबेट एंड सेकंड इज योर इनफॉर्मल, ठीक है। अब फॉर्मल डिबेट में आता है आपका जनरल स्पीकर्स लिस्ट, ठीक है। और इनफॉर्मल डिबेट में आता है आपका मॉडरेटेड कॉकस एंड
अनमॉडरेटेड कॉकस। ठीक है, चलो अब इन सबको डिटेल में समझते हैं थोड़ा। स्टार्ट करते हैं मॉडरेटेड कॉकस से। ठीक है, सॉरी, स्टार्ट करते हैं जनरल स्पीकर्स लिस्ट से। जनरल स्पीकर्स लिस्ट एक ऐसी स्पीच है जो आप बाय डिफॉल्ट 90 सेकेंड्स के लिए देते हैं। ठीक है, दिस स्पीच कैन बी ऑन एनीथिंग रिलेटेड टू द एजेंडा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस कमेटी का एजेंडा रख दिया पार्टी, तो आप ड्रेस कोड फॉर द पार्टी डिस्कस कर सकते हो, आप वेन्यू फॉर द पार्टी डिस्कस कर सकते हो, आप फूड एंड बेवरेजेस फॉर द पार्टी डिस्कस कर सकते हो। सो एनीथिंग रिलेटेड टू द एजेंडा दैट यू फील इज इम्पोर्टेंट और यू एज अ कंट्री वांट टू टॉक अबाउट, आप उसके बारे में अपने जनरल स्पीकर्स लिस्ट में बात कर सकते हैं। कोई आपको लिमिट नहीं कर रहा है कि आप इस चीज के बारे में बात करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एजेंडा पॉल्यूशन है, तो आप चाहो तो एयर पॉल्यूशन की बात कर लो, चाहो तो वाटर पॉल्यूशन की बात कर लो, चाहो तो लैंड पॉल्यूशन की बात कर लो, नॉइस, अप टू यू। ठीक है, या चाहो तो किसी और कंट्री को ब्लेम कर दो फॉर द पॉल्यूशन इन योर कंट्री, अप टू यू। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आपको 90 सेकेंड्स में अपने बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रूल, जीएसएल में कुछ रूल्स हैं, कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। अगर आपने बाय डिफॉल्ट 90 सेकेंड्स यूज नहीं करा है और आपका टाइम बच गया है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं यील्ड। यील्ड क्या है? यूजिंग रिमेनिंग टाइम। ठीक है, यूजेज ऑफ रिमेनिंग टाइम। अब जो यील्ड है आपके, वो 3 तरीके के हैं। ठीक है, पहला है यील्ड टू द चेयर, फिर है यील्ड टू अनदर डेलीगेट, एंड थर्ड है यील्ड टू पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डरना मत, समझा रही हूँ। ठीक है, ओके, चलो। चेयर कौन होते हैं? जो आपकी कमेटी में जजेस होंगे, जो आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, तो जब आप करते हैं अपना टाइम यील्ड टू द चेयर, यानी कि यू आर गिविंग योर टाइम टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब उनके ऊपर है जो जजेस हैं कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे या वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है यील्ड टू अनदर डेलीगेट। व्हेन यू यील्ड योर रिमेनिंग टाइम टू अनदर डेलीगेट, तो आपने लेट्स से 70 सेकंड्स बोला, 90 में से 20 सेकंड्स बचे, तो जिसकी भी स्पीच आपके बाद में होगी या जिसको भी आप स्पेसिफिकली देंगे, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो आपने खुद तो 90 सेकंड्स बोला, बट उनको मिल गए 110 सेकंड्स। इसीलिए बेस्ट द यील्ड दैट आई रेकमेंड इज दिस वन, पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, आपके बचे हुए टाइम में पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन याद रखना, हम 3 बार इसे एनकाउंटर करेंगे। पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो इसमें दूसरी कंट्रीज आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं एंड आप उन्हें आंसर करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को अगर इश्यूज है तो आप लिख लीजिएगा, मैं एंड में आंसर करूंगा। ठीक है, आई रिपीट, यहां तक हमने एमयूएन में आए, पहली चीज हुई रोल कॉल। रोल कॉल में हमने 2 तरीके से रिप्लाई करा। प्रेजेंट, यानी कि हम यहाँ पे हैं एंड हम मे और मे नॉट वोट करें फाइनल डॉक्यूमेंट पे जिसमें सारे सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं जो भी डिस्कस हुआ है उसके। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब आप वोट करेंगे या तो फेवर में या अगेंस्ट में, जो भी फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, फिर मोशंस क्या होता है? कुछ भी करने के लिए एमयूएन में हमें मोशन रेस करना पड़ता है और वो मोशन जो होता है उस पर वोटिंग होती है। मोशन क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है टू प्रपोज एनीथिंग। तो मुझे अगर कमेटी का एजेंडा सेट करना है टू पॉल्यूशन, सो आई विल हैव टू रेज अ मोशन। ठीक है, टू सेट अप द एजेंडा टू पॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं डिबेट पे। 2 तरीके के डिबेट होते हैं, फॉर्मल डिबेट, इनफॉर्मल डिबेट। फॉर्मल डिबेट में आती है आपकी जनरल स्पीकर्स लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं जीएसएल, जिसमें आप कुछ भी अबाउट द एजेंडा बोल सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। बाय डिफॉल्ट 90 सेकेंड्स मिलते हैं आपको वो स्पीच देने के लिए। अगर टाइम बच जाता है तो आप यील्ड कर सकते हैं। ठीक है, यील्ड टू द चेयर, यानी कि जजेस को आपने टाइम दिया, वो आपसे या तो क्वेश्चन पूछेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यील्ड टू अनदर डेलीगेट, आपने अपना बचा हुआ टाइम किसी और को दे दिया, तो दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेन मोर मार्क्स। एंड यील्ड टू पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आई पर्सनली रेकमेंड, जिसमें बाकी कंट्रीज आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर करेंगे। अब आप मुझे कहेंगे मैम व्हाट इफ हमें आंसर नहीं आता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप बाद में लिख के दे दो। बट अगर आपको आंसर गलत आता है, आप थोड़ा बहुत भी देंगे, आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, बट अगर आप आंसर दोगे ही नहीं तो 0 मिल रहे हैं। तो ट्राई करो ना, इफ यू हैव पेड सो मच, पहला एमयू ने इतना क्या सोचना है, गड़बड़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत आंसर दे दो। ठीक है,
ऐसे ही सीखेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग इनफॉर्मल डिबेट में। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है जीएसएल की, जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम पहले इनफॉर्मल डिबेट कवर करते हैं। इनफॉर्मल डिबेट में भी पहले वी विल डू मॉडरेटेड कॉकस। ठीक है, मॉडरेटेड कॉकस क्या है कि आपके घर आया पिज्जा, डोमिनोज वाले स्लाइस करना भूल गए। अब अगर आप वो पूरे पिज्जा को खाओगे बिना स्लाइस करे तो टॉपिंग्स गिर जाएंगे, आप कवर ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है। सेम है एजेंडा, एजेंडा बहुत बड़ा है। अगर हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें बहुत एस्पेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस है, कॉजेज हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, पोल्यूशन ड्यू टू बायोमेडिकल वेस्ट है। ठीक है, मल्टीपल चीजें हैं, राइट। तो अगर हम जनरल ही डिस्कशन करते रहेंगे तो हम स्पेसिफिक टॉपिक्स कब कवर करें। इसलिए हम मॉडरेटेड कॉकस में क्या करते हैं, हम अपने मेन एजेंडा को डिवाइड कर देते हैं इनटू सब टॉपिक्स एंड देन वी गिव स्पीच ऑन दैट। ठीक है, तो हम अपने मेन एजेंडा से सब टॉपिक्स बनाते हैं या फिर सब एजेंडाज बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम उस पर स्पीच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मेन एजेंडा है पॉल्यूशन तो मैंने अपना सब एजेंडा बना दिया वाटर पॉल्यूशन, फिर हम सबने वाटर पॉल्यूशन पे स्पीच दी। दूसरा सब एजेंडा मैंने बना दिया नॉइस पॉल्यूशन, हम सबने नॉइस पॉल्यूशन पे स्पीच दी। दैट इज हाउ वी डू इट। या ठीक है, समझ आया। मेन टॉपिक को सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसकी भी कुछ एडिशनल चीजें होती है जो हमें रिमाइंड मतलब माइंड में रखनी चाहिए, बट वो मैं कल बताऊंगी, आज हम सिर्फ बेसिक्स समझते हैं। ठीक है, अब दूसरा, और इसमें देखो वर्ड है मॉडरेटेड। कभी आपने अगर कॉलेज में, स्कूल में पैनल डिस्कशन देखा होगा तो एक मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर का काम क्या होता है कि अगर दो पैनलिस्ट आए, दो मिनिस्टर्स आए अलग से, तो वो कभी बोल रहा है एक मिनिस्टर को कि आप बताइए, फिर बोल रहा है दूसरे मिनिस्टर को आप बताइए। तो जो आपकी कमेटी के चेयर्स होते हैं ना, वो मॉडरेटर का भी रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि ओके इट्स योर टाइम टू गिव अ स्पीच, देन इट इज योर टाइम टू गिव अ स्पीच। ठीक है, तो हमने मॉडरेटेड कॉकस में क्या किया, हमारे मेन एजेंडा को सब एजेंडा में डिवाइड करा और उस पर स्पीच दी। अब आप कहेंगे मैम कब डिवाइड करेंगे, कौन करेगा। तो आपके जो टेलीग्राम ग्रुप्स बने हैं ना, लॉबिंग ग्रुप्स, वो हम ओपन कर देंगे एमयूएन से 3 दिन पहले। तब आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे एंड तब आप लोग सब डिसाइड करेंगे, फिर आप स्पीचेस बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ इट हैपेंस। अब आते हैं अनमॉडरेटेड कॉकस पे। अनमॉडरेटेड है यानी कि कोई मॉडरेट नहीं कर रहा। चेयर्स जो जजेस होंगे, वो जिन्हें हम चेयर्स बोलते हैं, वो इसे मॉडरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप सब उठ के बोल सकते हैं। तो कब यूज होता है अनमॉडरेटेड कॉकस, थोड़ा ग्रुप डिस्कशन की तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि आप सब बच्चों को मैं या तो पेरिस लेके जाऊंगी या स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगी। ठीक है, अब पहले तो आप बहुत खुश होते हो, फिर लड़ते हो कि अरे जाना कहाँ है, पेरिस कोई बोलता है, पेरिस कोई बोलता है स्विट्जरलैंड, ऐसे लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ कि देखो मैं बाहर जा रही हूँ 10 मिनट के लिए, लड़ो मत, मुझे बता देना 10 मिनट बाद कि आपको पेरिस जाना है या स्विट्जरलैंड जाना है। ठीक है, तो आप 10 मिनट में क्या करोगे, एक दूसरे को कन्विंस करोगे, लॉबिंग करोगे। लॉबिंग मतलब कि लोगों को कन्विंस करके अपने साइड ला रहे हो। ठीक है, नेगोशिएट करोगे। सेम होता है अनमॉडरेटेड कॉकस में। अगर एमयूएन में आप कोई भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और क्योंकि उसके लिए हर चीज के लिए मोशन रेज होता है, आपको वोट्स चाहिए, वोट ही नहीं मिल रहा है मेजोरिटी के, तो इशू हो गया ना। तो इस चक्कर में आप अनमॉडरेटेड कॉकस लेते हैं, वहां लॉबिंग करते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, अपनी सीट से उठ जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है। इसमें जजेस कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मल डिबेट एंड इनफॉर्मल डिबेट। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स पे। अब जो भी डाउट्स हैं अभी मत लिखना क्योंकि मिस हो जाएंगे। एंड में मैं जब बोलूंगी राइट योर डाउट्स तब लिखना। ठीक है, अभी अपने पेपर पे लिख के रख लो। ओके, अब आते हैं पॉइंट्स पे। देखो, अगर मुझे पूरी कमेटी के लिए कुछ भी करना है तो मैं मोशन रेस करूंगी। ठीक है, बट अगर किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, वट एवर, ठीक है, तो उस केस में आप मोशन थोड़ी रेस करोगे। अगर वॉशरूम जाने के लिए मोशन रेस करते रहे हम, तो फिर तो ऐसा हो जाना है कि कमेटी में सारा दिन यही मोशन रेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास होते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स होते हैं, अगर आपका कोई इंडिविजुअल कंसर्न है तो वो रेस करने के लिए आपके पास होते हैं पॉइंट्स। अब पॉइंट्स आपके 4 तरीके के होते हैं। ठीक है,
पहला है पर्सनल प्रिविलेज, ठीक है, पर्सनल प्रिविलेज। सेकंड है इंक्वायरी, थर्ड है ऑर्डर, फोर्थ है पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि आप सबको पता है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। चलो बस ये और एक चीज और बची है और फिर सेशन है, तो थोड़ा सा मेरे साथ बियर कर लीजिए, मुझे पता है सबको बहुत भूख लग रही है, ठीक है, बट प्लीज ओके, कल से खाना खा के बैठना, वरना वीडियो बंद करके धीरे धीरे साथ में खाते रहना, ओके। चलो ठीक है। पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज क्या है? अगर एमयूएन के बीच में आपको रेस्ट रूम जाना है, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, पानी, एनीथिंग, एनी पर्सनल कंसर्न है, तो आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज रेज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक आई थिंक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं पॉइंट ऑफ इंक्वायरी पे। अगर आपको कोई डाउट है, मैम मेरी स्पीच कब है, कितनी देर की स्पीच है, कितने सेकंड्स मुझे बोलना है, कितने लोगों के बाद आती है, ब्रेक कब होगा, एमयूएन के रिजल्ट्स कब निकलेंगे, कोई भी आपका डाउट है जो आपको जजेस से पूछना है, चेयर से पूछना है, तो आप रेज करेंगे पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी इज फॉर आस्किंग योर डाउट्स टू दी जजेस, ठीक है। फिर आते हैं हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, ठीक है। अब इसकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं। पहला, अगर जजेस ने कुछ गड़बड़ करी, प्रोसीजरल एरर है, मतलब आपकी स्पीच थी, आप है इंडिया और नेपाल को चांस दे दिया, ठीक है, और गड़बड़ करी उन्होंने, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप रेज कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर किसी डेलीगेट ने कुछ गलत बोला तो वो हाईलाइट करने के लिए भी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हैं। ये ऑल्दो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, जैसे एक डेलीगेट ने बोला यूएन वाज मेड इन 2002, अब वो तो गलत है, यूएन तो 1945 में बना था, राइट, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हैं। बट अब वो सब ईबीज नहीं लेते हैं, क्योंकि वो वाला पॉइंट ऑफ ऑर्डर यूएन यूएसए वालों ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो आपको अपने ईबी से जब आप एमयूएन में जाएंगे ऑन द डे पूछना है कि क्या आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन मिस्टेक्स ऑफ अदर डेलीगेट्स लेंगे या नहीं लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, यू आस्क क्वेश्चंस टू अदर पीपल एंड दे आंसर, और दे आस्क यू क्वेश्चन एंड यू आंसर, ठीक है। अब लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द एमयूएन जो है, सेकंड लास्ट है बट आज के लिए लास्ट है, ठीक है, वो है चिट्स। चिट्स क्या है? देखो, हर चीज हम वर्बली एमयूएन में नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें रिटर्न में करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन और डिबेट है वो दोनों होता है, वर्बल भी और रिटर्न भी। तो चिट्स हमारी होती है, रिटर्न आपको मिलेंगे, हम आप सब जब आप एमयूएन में आएंगे आपको एक किट मिलेगी जिसमें आपका नोट पैड, चिट पैड सब कुछ होगा, ठीक है, पेन होगा, एक लेदर फोल्डर है, सब कुछ है, ठीक है। तो आपको सब मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपको उसमें चिट्स मिलेंगी। अब वो चिट्स में क्या है, दो तरीके की आप चिट्स लिख सकते हैं। पहली है हमारी पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन चिट, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम सबको पता ही है, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो अगर आपको वर्बली किसी कंट्री से क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं मिला है तो आप वो लिख कर पूछ सकते हो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन चिट में। इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, टू जिस कंट्री से आपको क्वेश्चन पूछना है, फ्रॉम आपकी खुद की कंट्री, ठीक है, एंड देन यू राइट वाया ईबी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वाया ईबी मतलब होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू जाएगा। तो अगर आप इंडिया हैं, ठीक है, और आपने नेपाल से क्वेश्चन पूछा है, नेपाल, और आप हैं इंडिया, ठीक है, अब आपने लिखा है वाया ईबी, तो आपसे पहले ये पेपर लिया जाएगा, आप अपना हैंड रेस करते हैं उस पेपर के साथ, और कमेटी में टीम वाले लोग घूम रहे होते हैं, वो आपसे वो पेपर लेंगे, देखेंगे कि आपने उस पे वाया ईबी लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपने वाया ईबी लिखा होगा, सॉरी, तो वो पहले जाके जजेस को देंगे, जजेस आपके उसके मार्क्स लगाएंगे, फिर वो रिटर्न करेंगे और तब वो जाएगी नेपाल के पास, ठीक है। तो अगर आप वाया ईबी लिखते हैं तो वो मार्क्स मिलेंगे आपको उस चिट के, वो जजेस पढ़ेंगे। बट अगर आपको किसी को लिखना है कि ब्रो यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, आपने अपना ब्लेजर कहाँ से खरीदा है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, कहाँ से मिलेगी, क्या आप आइसक्रीम खाने चलोगे, ऐसे इनफॉर्मल चीजें लिखनी है, तो अब ये तो आप ईबी को नहीं पढ़ाओगे ना, वरना ईबी तो गुस्सा हो जाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से वाया ईबी हटा देना, ठीक है, ओके। चलो ऑल्सो अगर आप
आई मीन या इफ यू पीपल लास्ट टाइम हमारे को बहुत डेलीगेट्स बोलते थे कि हम लोग वो जो डालते हैं हम उसे वो पोस्ट नहीं करते हैं, तो अगर आप लोगों का कुछ भी you put forth anything on social media, you can tag us and we will repost it. Okay. The novices को आप टैग कर सकते हैं and we will repost it. Okay. चलो, ये पता नहीं क्यों बी नहीं हो रहा है, बट ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ चिट्स इज सब्सटैंटिव चिट्स. ठीक है. सब्सटैंटिव चिट्स क्या होती हैं? देखो, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अभी से बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं. मुझे रोज मैसेज आता है कि मैम मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये ऐसे कर ले, वो ऐसे कर ले. ठीक है. तो बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं. ठीक है. अब जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी निकाल के रखेगा, राइट? तो लेट्स से एक बच्चा है जिसने 10 पॉइंट्स प्रिपेयर करे हैं बोलने के लिए. ठीक है, एक स्पीच में. बट क्योंकि उनकी बोलने की स्पीड स्लो है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेट्स से आप मान लो कि उन 10 में से 5 पॉइंट्स ही बोल पाए वर्बली. तो वो क्या कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग 5 पॉइंट्स है ना, वो लिख कर भेज सकते हैं थ्रू देयर सब्सटैंटिव चिट. तो सब्सटैंटिव चिट अगर आप लिख रहे हैं तो वो चिट होती है जिसमें यू कैन सेंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड. ठीक है. इसका भी फॉर्मेट होता है. ठीक है. ऊपर हेडिंग जाएगी सब्सटैंटिव चिट टू ये जजेस को जा रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड. ऑल्सो जब ये सेशन ओवर हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगी. बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं आप नोट्स नहीं बनाओ. ठीक है. अगर मुझे पता चलेगा आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो फिर नहीं शेयर करूंगी. ठीक है. टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड फ्रॉम आपकी कंट्री, एंड यहाँ नीचे आपके जो भी पॉइंट्स हैं आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो लिखकर भेज सकते हैं. ठीक है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब एमयूएन एंड होने वाला होता है तो होती है हमारी डॉक्यूमेंटेशन. यानी कि आप एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं. ठीक है. डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में यू मेक अ फाइनल रिटन डॉक्यूमेंट विद सॉल्यूशंस / कंक्लूजन्स. ठीक है. आपने जो भी डिस्कस करी है अच्छी चीजें, एंड में वो डॉक्यूमेंट आप लोग सब मिलके बनाते हैं, एंड देन यू बेसिकली ऑल उस पे वोट करके उसको पास कराते हैं. बट ये हम अपने 3rd डे में कवर करेंगे क्योंकि ये इन इट सेल्फ ही बहुत इलेबोरेटेड कॉन्सेप्ट है. ठीक है. अब मैं एक बार सारा एमयूएन प्रोसीजर रिपीट कर रही हूँ 2 मिनट में, और फिर उसके बाद मैं डाउट्स करूंगी. ठीक है. पहला है हम आए, हमने रोल कॉल दिया, प्रेजेंट एंड वोटिंग. और जब आप एमयूएन में आते हो तो आप अपना नाम भूल जाओ. मतलब यू आई एम नॉट कशिश, मैं हूँ जो मेरी कंट्री है. तो आपको कोई कशिश या ये वो नहीं बुलाएगा, या आपका जो भी नाम है. They will call you delegate of whatever is your country. Let's say my country is Norway, so I'll be called delegate of Norway. ठीक है. And that is how you will represent yourself in the whole MUN. Okay. So आप आए MUN में, पहली चीज हुई रोल कॉल, प्रेजेंट एंड वोटिंग. प्रेजेंट फाइनल डॉक्यूमेंट में we can abstain if we want to. प्रेजेंट एंड वोटिंग we can't. ठीक है. मोशंस होता है सिंपल स्टेटमेंट टू स्टार्ट एनीथिंग. ठीक है. उसके बाद हमने एजेंडा सेट करा अपना कमेटी का. एजेंडा सेट करने के बाद डिबेट होता है. पहले होगा फॉर्मल डिबेट GSL, जिसमें भी स्पीक फॉर 90 सेकेंड्स. टाइम बचता है तो वी कैन यील्ड. ठीक है. फिर आता है आपका इनफॉर्मल डिबेट, मॉडरेटेड कॉकस, अनमॉडरेटेड कॉकस. मॉडरेटेड कॉकस में मेन टॉपिक को सब पार्ट्स में, और अनमॉडरेटेड कॉकस को में हम लोग लॉबिंग कर सकते हैं, यानी कि एक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं जब हमारी कमेटी कोई भी कंसेंसस पे नहीं पहुंच रही है. ठीक है. फिर आते हैं पॉइंट्स. इंडिविजुअल कंसर्न्स के लिए पर्सनल प्रिविलेज है. अगर आपको कोई खुद से रिलेटेड कंसर्न है, पानी पीना ठंड लग रहा है, गर्मी लग रही है, एनीथिंग. इंक्वायरी है अगर आपको डाउट पूछना है. ऑर्डर है अगर कोई मिस्टेक जजेस करते हैं या आपके फेलो डेलीगेट्स करते हैं. पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है if you want to ask questions or if you want to answer questions and other people asking question. लास्ट में होता है चिट्स, यानी कि आपकी रिटर्न सबमिशन 2 तरीके की होती है, पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और सब्सटैंटिव. पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आप दूसरी कंट्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको वर्बली चांस नहीं मिला. और सब्सटैंटिव चिट्स में यू कैन, हर्षिता प्लीज टाइप इट डाउन व्हाटएवर इट इज, आई विल आंसर. ओके. सब्सटैंटिव चिट्स में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द ईबी भेज सकते हैं. कमेटी के एंड में होती है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हमने जो भी डिस्कस करें हैं, सॉल्यूशंस, कंक्लूजन्स, वो हम लिख देते हैं एक पेपर, पीस ऑफ पेपर, एक डॉक्यूमेंट में, एंड दैट इज हाउ वी एंड द कमेटी. ठीक है. अब ये आज का मेनली समअप है. कल हम इसी को थोड़ा डिटेल में इसके कुछ एडवांस चीजें करेंगे. ठीक है.
फॉर नाउ मैं अभी 9:25 हो रहे हैं, तो आई विल जस्ट स्टार्ट विद ऑल द क्वेश्चंस जो मुझे अब आए हैं, ठीक है। 9:25 ऑनवर्ड्स यहाँ से जो भी भेजेंगे, ठीक है। ये थोड़ा पहले से कर लो, बहुत सारे हैं पहले, तो 9:25 से करते हैं स्टार्ट। तो जिन्होंने पहले भेजा है वो, या थोड़ा वेट, आई विल सी कहाँ से अभी क्वेश्चन आए हैं। ओके, oh my god, you people have spammed me with all the questions, no problem. Okay. GSL exceed more than 90 seconds तो क्या points? जिसको कोई doubt नहीं है they can leave, जिनको doubts है they can stay, but जिनको doubt नहीं है everybody give me a thumbs up please. अगर आपको आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला तो give me a thumbs up if you liked it and if you want us to continue the session tomorrow also. Okay, बाकी लोगों ने कुछ नहीं सीखा आज? हाँ, okay, thank you. राइट, जिनका हो गया, जिनको कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव, जिनको है दे कैन टाइप इट डाउन। देखो बहुत सारे डाउट है तो मैं धीरे धीरे आपके डाउट पे आऊंगी, तो इसलिए प्लीज बियर विद मी, ओके। अगर हमारा जीएसएल 90 सेकंड से ज्यादा जाता है तो पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, डिडक्ट नहीं होंगे बट आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, तो इट्स बेटर कि आप टाइम करके ही बोले, ठीक है। नेक्स्ट है इफ वी डू नॉट नो द आंसर टू द पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट डू वी डू। आप बोल सकते हैं कि आप वाया चिट रिप्लाई करेंगे। यस किमाया? दी आपका बीच में माइक थोड़ा ग्लिच कर दिया था। अच्छा, कहाँ से? व्हाट पार्ट वाज नॉट ऑडिबल? It's fine on my end. ओके, राइट। इफ वी डू नॉट आंसर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन तो आप बोल सकते हैं यू विल रिप्लाई वाया चिट, और आप लिख कर भेज सकते हैं। यील्ड टू अनदर डेलीगेट होता है कि आपने अपना बचा हुआ टाइम किसी और को दे दिया, खुद तो कम टाइम बोला बट दूसरों को ज्यादा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, ठीक है, टू स्पीक। कैन यू आंसर वाया चैट? यस यू कैन मैम, विल बी, यस आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग। आज नहीं बट एक बार वेंसडे को सारे सेशंस हो जाएंगे तो थर्सडे या फ्राइडे तक आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, ठीक है। In GSL, do we talk about what our country has done or propose new solutions? It is up to you. We cannot restrict you, but it is always better to have a global perspective. कल जब हम रिसर्च की बात करेंगे ना तो मैं बताऊंगी कि स्पीच में क्या बोलना चाहिए, ठीक है। हाउ टू रेज अ मोशन, देखो सारे मोशन रेज करने का जानवी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। क्योंकि आज का सेशन ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया, कल मैं ये फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। If we give answer in written later, then marks will be added. Yeah, there will be marks, but in the written section. Ma'am, I want to change my committee. You can contact Molly or me. हमारा नंबर हर जगह है, वेबसाइट से ले लेना वरना। Ma'am, do we know which country we lobby with? Lobbying groups. आपको जो आपका lobbying group है, all countries can lobby together, okay? Do all committees sit together? No. सब अपनी अपनी कमेटी में बैठते हैं, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है। टाइमिंग्स फॉर नोविसेस ऑन डे 1 एज वेल एज डे 2। प्रोबेबली इट विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, हम लोग जो शुरू कर देते हैं वो अराउंड 9 कर देते हैं, इवनिंग में बाय 5:30 और 6:30 तक ओवर हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपका लंच एंड ब्रेकफास्ट इज ऑन अस, वी विल टेक केयर ऑफ दैट, ओके। और दोनों दिन में ऐसा होता है कि डे 1 के एंड पे सोशल होगा, यानी कि डीजे होगा, तो इफ यू वांट टू लीव अर्ली आप जा सकते हो, वो छोड़ के, वो ऑप्शनल है। डे 2 पे क्लोजिंग सेरेमनी, आपको नहीं रुकना आप तो भी जल्दी जा सकते हैं, ठीक है। What are the awards for the winners? So there will be trophy and cash prizes. Mostly MUNs में सिर्फ first 3 positions के लिए cash prizes होते हैं, हमने यहाँ पर first 5 positions के लिए cash prizes रख दी हैं, ठीक है। How many PR chits can we send? वो आपको on the day अपने EB से पूछना पड़ेगा, ठीक है। The winners get a trophy and a 50K. No, the cash prize is not 50K. Cash prize is on our Instagram page. मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी आप अभी Instagram page फॉलो कर लो, the.novices है, उसमें सारे अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं स्टोरी पे, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। एवरीबडी फॉलो नाउ, ओके। इज देयर एनी कैप, वो आपको ऑन द डे पता चलेगा। कैन वी मेक मोर देन 1 अलायंस? आप बना सकते हो बट एंड में आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन में चूज करना पड़ेगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बट अप टू यू, दैट कैन बी योर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स दैट यू प्ले विद द कमिटी। यूनिसेफ कमिटी इज ऑनलाइन, यस ऑनलाइन है, ठीक है। Can you give an example of a question? Okay, so for example, Divya, you gave a speech on, let's say, pollution and how we should eradicate it. And I ask you, let's say you are Iran, okay? So I tell that Iran, आपके एक particular region में, there is a river that is being polluted by industrial waste. And the reason why our government has not taken any action is because that industrialist has been
funding government projects, and also bribing the individuals. So do you think corruption is more important than the progress of your nation and preservation of your resources? ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चंस. Can you tell about chits once again? Yes. Written आप लिख कर देते हैं chits अगर आपको verbally कुछ भी करने का चांस नहीं मिला. अगर verbally question नहीं पूछ पाए तो POI chits. अगर verbally आप लोग extra points नहीं बोल पाए तो substantive chits. ठीक है? Will we be marked on the basis of, आप किस बेसिस पे मार्क होगी, ये कल का मेरा टॉपिक है. डोंट वरी, मैं सब बोलने का कल कवर कर दूंगी. बट MUN इज द ओनली प्लेस जहां पे अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर नहीं हो ना तो भी आप जीत सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बहुत मैटर करता है. ठीक है. It is my first MUN. I'm scared and nervous. I don't know what to do. I would rather just sit. No. Please don't do that. अगर आपका पहला MUN आपको बहुत डर लग रहा है, प्लीज चुप मत बैठना कमेटी में. ट्राई करना हर चीज में बोलने का. गड़बड़ बोल दो कि कोई बात नहीं, आधे से ज्यादा लोग आपको दोबारा मिलेंगे भी नहीं. ठीक है. इट्स बेटर कि आप ट्राई करो. कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो जज तो लोग आप कुछ नहीं भी करोगे ना आपको तो भी करेंगे. जो चुप रहेगा उसके लिए भी सब बोलेंगे कि अरे यार ये तो चुप ही रहता है, कुछ कर नहीं रहा है. और जो बोलेगा उसके लिए भी सब बोलेंगे कि ऐसे क्यों बोल रहा है. तो when people have to anyway talk about you, why to be scared? Let's try, okay? You've paid so much amount and I would not feel nice if you guys would not participate, okay? It's my first MUN. I don't know how to prepare. Don't worry, कल बताएंगे कैसे प्रिपेयर करना. ठीक है. कल का सेशन इज हाउ टू प्रिपेयर. डोंट वरी, अभी आप प्रोसीजर समझ जाओ, उसके बाद प्रेपरेशन तो हम आपको सिखा देंगे. ठीक है. My previous EB scolded me for speaking very fast. That could be a case. प्रगति, अगर आपने क्वेश्चन दिया तो मुझे थोड़ा टाइम देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई विल आंसर. ठीक है. My previous EB in MUN scolded me for speaking very fast. हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जब दूसरे डेलीगेट्स आपकी बात ही नहीं सुन पा रहे हैं तो आपको मतलब कैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछे. तो इट इज बेटर कि ना आप बहुत स्लो बोलो ना आप बहुत फास्ट पेस में बोलो, एक नॉर्मल पेस में बोलो. ठीक है. What is the prize for UNEP? All the committees have first 3 prizes, that is best delegate, high commendation, special mention. फिर है 2 honorable mentions जिनके भी कैश प्राइजेस हैं, जो बाकी कॉन्फ्रेंसेस या बाकी इवेंट्स आपको नहीं देते हैं. उसके बाद उन लोगों के लिए मेडल्स होंगे, फर्स्ट 3 के लिए ट्रॉफीज होगी. इनफैक्ट मेडल्स तो 5 ऑनरेबल मेंशंस के लिए होंगे, बट उसमें से सिर्फ 2 को ही कैश प्राइज मिलेगा. ठीक है. फॉर विनर और ओके. Can we use electronic means to answer the question? Will there be there is no Wi-Fi that is provided. Technically MUNs में internet allowed होना नहीं चाहिए, but क्योंकि first timers आते हैं तो हम कर देते हैं. ठीक है. I couldn't hear him, but he still got verbal mention. This is wrong. नहीं, it is not wrong. I'll tell you why. There are a lot of people जिनका by default dialect ही बहुत fast होता है. जैसे कुछ लोगों के parents अगर वो southern part of the country में रहे हैं तो वो बहुत fast बोलते हैं. ठीक है. तो एज EBs एज जजेस हमें ये सब चीजें अकोमोडेट करनी पड़ती हैं. तो अगर कोई फास्ट बोल रहा है बट अच्छा पॉइंट बोल रहा है तो दे विल विन. इट इज नेवर एवर अबाउट हाउ यू स्पीक. It is always about what you speak. So your content should be top notch. Okay. Ma'am, how do we know in the beginning whether we wish to vote or we don't? अगर आपको जो एजेंडा पता है उस पर आपको पता होगा कि लेट्स से अगर एजेंडा है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, आप इंडिया है और आपकी इजराइल से अच्छी रिलेशन है, तो आपको पता है कि एंड में आपके लिए ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आप फंस जाओ. तो इट इज बेटर टू ऑलवेज से प्रेजेंट. अगर आपको नहीं भी पता है कि वोट करना है नहीं करना है तो प्रेजेंट बोल दो, क्योंकि प्रेजेंट में वोटिंग का ऑप्शन भी तो होता ही है ना. I understood the structure of the debate, but I am confused on what is the procedure and how will these debates take place. जो मैंने अभी आपको ये पूरा बताया है ना, moderated caucus, unmoderated caucus, ये प्रोसीजर ही है. इस तरीके से डिबेट चलेगा. तो आपकी GSL स्पीचेस होंगी, moderated caucus स्पीचेस होंगी, बीच में POIs वगैरह होंगे. ठीक है. बट आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, तो जब आप ऑन द डे MUN पे आओगे तो आपको समझ आ जाएगा बहुत इजीली कि कैसे चलता है. ठीक है. पहली बार अगर आपका है तो ये टर्म्स थोड़े से ऐसा लग सकता है. Yes, if you want to only come on 2nd November, that is okay. You can attend. No issues. We are accommodative that way. Ma'am, in double delegation committee, any regulation about which delegates shall speak? देखो, डबल डेलीगेशन कमेटी में क्या होता है. प्रगति एंड ओमिशा, आई होप यू बोथ हैव रिटन योर क्वेश्चन. अभी मैं आंसर कर रही हूँ. अभी आई एम ऑन 9:25. 10 मिनट के और क्वेश्चंस है. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है डबल डेलीगेट कमेटी में, एनी वन ऑफ यू हैज टू गिव स्पीच, बट सारी स्पीचेस नहीं. तो ऐसा कर सकते हो आप, एक ने GSL बोल दिया, दूसरे ने मॉडरेटेड कॉकस 1 बोल दिया, तीसरे ने मॉडरेटेड कॉकस 2 बोल दिया, ऐसे दूसरे ने फिर मॉडरेटेड कॉकस 2 बोल दिया. सो यू कैन डिवाइड दैट. ओके. सब्सटैंटिव चिट्स वो चिट्स होती हैं जिसमें अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वर्बली नहीं बोल पाए हो तो आप वो रिटर्न में दे सकते हैं. ठीक है.
For UNGA, will we get to know which committee out of 6 we are in? आप GN plenary में हैं, यानी कि जनरल कमेटी होती है, any not one of the specific 6 committees, आप GA plenary में हैं, ठीक है? How many POI questions through chit I can send? That on the day आपको पता चलता है, वो आपकी भी तब बताते हैं. How will we get to know our country? Country का सबको मेल आया है. आप प्लीज अपना स्पैम मेल का ऑप्शन चेक कीजिए. हमने एक एक पर्सन को 2-2 3-3 बार मेल करा है, ठीक है? और अगर आपको फिर भी नहीं आया है तो आप हमें मेल डाल दीजिए thenovicesummit@gmail.com पे, ठीक है? वो हमारी ग्रीवियंस रिड्रेसल आईडी है, तो वहां पे हम आपका हेल्प कर देंगे, ठीक है? इज इट नेसेसरी टू गिव स्पीकर्स लिस्ट स्पीच? इट इज नॉट नेसेसरी टू इवन स्पीक इन द MUN, बट इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड दैट यू डू सो, ठीक है? कैन वी यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? या यू कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इवन आप रीड करके बोल सकते हो, आपको लर्न करके नहीं आना है. हाउ डू वी रेज अ मोशन? जानवी उसका फॉर्मेट आई टोल्ड यू कि मैं आपको बता दूं, ठीक है? इज इट कंपल्सरी टू चूज यील्ड व्हेन वी आर? या आप क्या करोगे वरना, ठीक है? तो यील्ड तो करना पड़ेगा. हाउ मेनी डेज प्रायर वी शुड प्रिपेयर स्पीच? उमिशा, इट इज ऑलवेज नॉट, मतलब इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप सिर्फ स्पीच बनाओ. तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी 90 सेकेंड्स की स्पीच है ना, तो आप कंटेंट इकट्ठा कर लो वैसा, या फिर आप 70 सेकेंड्स की बना लो, एंड जो रिमेनिंग 20 सेकेंड है वो आप फ्लेक्सिबल रखो. या जो पहले डेलीगेट्स होते थे, मतलब मैं 2016 में डेलीगेट करती थी, अब आई एम 23 इयर्स ओल्ड, तब मैं 9th क्लास में थी, तो तब हम क्या करते थे, हम सिर्फ रिसर्च इकट्ठी कर लेते थे और स्पीचेस ऑन द डे ऑन द स्पॉट बनाते थे. बट क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, आप पहले से बना लो, एटलीस्ट 2-3 दिन पहले आपको मॉडरेटेड कॉकस के टॉपिक्स फाइनल हो जाएंगे, तब बना लेना, ठीक है? कैन वी, व्हाट इफ वी एक्सीड? कुछ होता नहीं अगर आप 90 एक्सीड करो, बट फिर मार्क्स भी नहीं मिलते हैं. इज देयर एनी कैप फॉर चिट्स? वो आपको ऑन द डे मिलेगा. व्हाट इज यील्ड टू द फ्लोर? जो यील्ड टू द फ्लोर है, ये पहले बोला करते थे हम. जो यील्ड टू द चेयर का पर्पस है ना, वही सेम था कि फ्लोर को मिल गया, यानी कि आगे पास ऑन करो, ठीक है? इफ आर GSL एक्सीड्स, ये मैंने बता दिया, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. मैम व्हाट बेसिस वी विल बी गिवन पॉइंट्स? आपकी स्पीचेस, क्वेश्चंस, चिट्स, लॉबिंग, ऑल ऑफ दैट, हर EB का अपना मार्किंग स्टाइल होता है, ठीक है? तो वो आपको ऑन द डे बताएंगे, जैसे हर टीचर का अपना मार्किंग स्टाइल होता है ना. विल वी बी अलाउड? या आपके डिवाइसेस अलाउड हैं? POI क्वेश्चंस चिट से भेज सकते हैं, कितने वो आपको ऑन द डे पता चलेगा. आई हैव बीन अलॉटेड UN HRC. मैम आई वांट टू आस्क दैट कंप्लीट MUN कंटिन्यूअस फॉर बोथ डे? यस, दोनों दिन MUN चलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ कमिटीज 1 डे है, कुछ. अलायंस का मैंने बता दिया था, इफ यू वांट टू यू कैन बी इन मोर देन 1 अलायंस. कुड यू रेकमेंड? आई वुड ऑलवेज रेकमेंड प्रेजेंट अगर आप अनश्योर है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की जगह, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट एंड वोटिंग की प्रिविलेज है आपको वो यहाँ भी मिल रही है. जिसके कोई डाउट्स नहीं है दे कैन लीव. रिसर्च टिप्स मैं आपको कल सजेस्ट करूंगी, क्योंकि कल का पूरा सेशन ही रिसर्च पे है, ठीक है? बट कल प्लीज खाना खा के आना, या फिर हम एक चीज कर सकते हैं कल से कि हम बीच में एक ब्रेक रख दिया करेंगे, ठीक है? या अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आज मैं आप लोगों से एक पोल भी ले लूंगी, तो हम 7:30 सेशन शुरू कर सकते हैं, ताकि आप खाना खाने जा सको. वरना बीच में 5 मिनट का ब्रेक आई विल ट्राई टू गिव, ठीक है? मैम डू वी राइट सब्सटैंटिव चिट? हाँ, हेडिंग आपको देनी होती है, सब्सटैंटिव चिट है या POI चिट है. आरव ने मुझे स्पैम कर रखा है, आरव का आंसर कर दिया मैंने. एजेंडा फॉर एवरी कमिटी आप इंस्टाग्राम पेज पे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? व्हाट आर अवार्ड्स फॉर विनर्स? बेस्ट डेल, हाईकॉम, ठीक है? नो, स्टटरिंग डज नॉट, यू डू नॉट लूज मार्क्स, इट्स फाइन, ठीक है? मैम विल टेलीग्राम? यस, टेलीग्राम हम ओपन कर देंगे एटलीस्ट 3 to 5 years. ओके, somebody hit you and bullied you in MUN, तो आपको क्या करना है, एक कमिटी होती है जो हम बार बार बोलते हैं कि देयर इज एंटी हरेसमेंट कमिटी. आप हमारे पास आए, उन लोगों के, अगर हमें उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन करनी है, लीगल एक्शन लेना है, वो भी लिया जाएगा, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को और उनके स्कूल को मेल किया जाएगा ताकि उनके अगेंस्ट एक्शन हो. पेरेंट्स को बुलाया भी जाएगा, एंड ऑब्वियसली देयर आर रिक्वायर्ड एक्शंस टेकन. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज रीच आउट करिए. जो भी, अब यहाँ पे जैसे मैं फाउंडर हूँ, तो आप मुझे रीच आउट करना है, मेरी टीम में किसी सीनियर को रीच आउट करना, तो हम इमीडिएटली हम ऐसी चीजें रिजॉल्व करते हैं, ठीक है? ओके, नहीं 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 युवराज, ऐसा नहीं है. हर UN बॉडी में जिसकी मेंबरशिप लिमिटेड होती है, सारी कंट्रीज मेंबर नहीं होती हैं, वहां पे एक रेशियो डिवाइडेड होता है कि 13 सीट्स हम अफ्रीका को दे देंगे, 7 हम इस कॉन्टिनेंट को देंगे. तो ऐसा नहीं है कि वहाँ अफ्रीकन कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है. ऑल्दो MUN में ऐसा नहीं होता. MUN में क्योंकि बच्चे ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज चूज नहीं करते हैं, तो वो हो ही नहीं पाती हैं, ठीक है, एलोकेट. डज लॉबिंग हैपन? हाउ डज लॉबिंग हैपन?
अगर ऑन द डे ऑफ द एमयूएन की बात करेंगे आप, तो इनफॉर्मली आप अपनी जगह से उठते हैं, यू डिस्कस। और अगर ऑनलाइन बात करें तो आपके हम टेलीग्राम ग्रुप्स ओपन कर देंगे, वहां पे होगा, ठीक है। अवार्ड्स फॉर द विनर्स आई हैव टोल्ड यू, बेस्ट डेलीगेट, हाई कमेंडेशन, स्पेशल मेंशन एंड ऑनरेबल मेंशन, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी, क्योंकि देखो वी कैन ऑर्गेनाइज, देर आर पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, सबके अपने बैकग्राउंड है, सबकी अपनी पर्सनल वैल्यूज है, किसी सबका अपना फैमिली बैकग्राउंड है। अगर किसी को इतनी वैल्यूज नहीं है दैट दे डू नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट यू एंड दे बुली यू एंड हिट यू, तो आप ऑब्वियसली कंप्लेन करिए, स्टैंड अगेंस्ट दोज पीपल। क्योंकि अब आप अगर बोलेंगे, आज बोलेंगे, तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट रिग्रेट। सो ऑलवेज लर्न टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ एट दैट वेरी मोमेंट। ऐसा कुछ हो, feel free to reach out to me, then it is my job to handle that entire issue, ठीक है। मैम हाउ डू वी नो विच कंट्री वी लॉबी विद? अच्छा, लॉबिंग ग्रुप में हमने सबको बोला अपने आप को रीनेम कर दो, ठीक है। तो दैट वे, और कौन सी कंट्रीज के साथ आपको लॉबी करना चाहिए उसके लिए आप थोड़ा रीड करिए अपनी कंट्री की रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। कल अगेन मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि वैसे तो हम चैट जीपीटी और विकिपीडिया बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल यूज नहीं करना होता, बट वी हैव सम ways how which in which AI can be little useful, not in research but in these general things, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, ठीक है। will points of information be allowed only in, technically points of information सिर्फ GSL में होते हैं, बट अगर आप सब चेंज करते हैं प्रोसीजर्स तो मॉडरेटेड कॉकस में भी हो सकते हैं। प्राइजेस फॉर यूएनईपी बता दिया, लव द सेशन, थैंक यू सो मच महिमा, मीन्स अ लॉट। अवार्ड फॉर विनर ये सेम ही आए हैं, दोनों मैंने बता दिए, दोनों बडीज ने स्पैम करा है। क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। वी कैन स्पीक, हाउ डू वी नो वी कैन स्पीक? आपको बुलाया जाता है आपकी कंट्री को, ठीक है। व्हाई वुड एनी डेलीगेट नॉट विश टू वोट? हाँ जी, एक डेलीगेट फाइनल डॉक्यूमेंट पे इसलिए वोट नहीं करना चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल देखो कि दो कंट्रीज है जिनकी वो बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और दोनों कंट्रीज आपकी कंट्री को हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक के साथ भी रिलेशन खराब नहीं करना चाहोगे एक की साइड लेकर, ठीक है। या बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिलीजन, आप जो मॉरली ठीक है बट आपकी कंट्री में जो डोमिनेंट रिलीजन है उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो उस केस में आप वोट नहीं करोगे, वरना आपको आपकी कंट्री में बैकलैश मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने डे 1 पे प्रेजेंट बोला है तो आप डे 2 पे प्रेजेंट एंड वोटिंग बोल सकते हो, बट वाइसा वर्सा नहीं कर सकते, ठीक है। अवार्ड्स बता दिए, ये बता दिया। हाउ टू रेज अ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, आप सभी को एक फ्लैग कार्ड मिलेगा, मतलब नेम कार्ड्स होते हैं आपके सीट पे रखे होते हैं जिसमें आपकी कंट्री लिखी होती है, ठीक है। तो यू कैन प्रोबेबली वो रेस करते हैं आप, एंड देन आपके ईबी जो है दे सी इट एंड दे ask you कि what point do you rise to, and then you can tell them whatever point is it. सेम क्वेश्चन 100 टाइम्स आ चुका है। हाउ मेनी पीओ एंड सब्सटैंटिव, वो आपको ऑन द डे आपके ईबी बताएंगे। मार्किंग स्कीम भी आपके ईबीज बताते हैं ऑन द डे, ठीक है। मैम डू वी हैव टू? नो नो, हार्ड कॉपी नहीं है वो, आप सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स व्हाइल फ्रेमिंग डीआर फॉर्मेटिंग इज नॉट परफेक्ट, ओके। Also, sometimes some solutions are presented outside the power of the committee. So, are we very stringent about such rules, or can EB let it pass a bit? Technically, committee के mandate का breach तो नहीं होना चाहिए, but अगर beginners committee होती है तो EBs थोड़ा lenient होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे mostly बच्चे beginners हैं, तो इसीलिए बहुत lenient हो जाते हैं, ठीक है। But yeah, I am telling you, it is, there are, most of the kids are beginners, but that does not mean there is not good competition. बच्चे, मेरे को एक दो मतलब किसी ने बताया, there was one person जो कुछ बच्चों की स्पीच रीड कर रहे थे जिन्होंने उन्हें भेजी थी कि ठीक है क्या, and they have written so good speeches like experienced delegates. So yeah, हर्षिता मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। स्टटरिंग से मार्क्स नहीं, आप एंड में एक बार दोबारा डाल दो, अभी तो मैं 29 पे पहुंची हूँ। कैन यू स्क्रॉल अप अ बिट? कैश प्राइजेस इंस्टाग्राम पेज पे हैं। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट 90 सेकंड स्पीच, उसे हम जीएसएल बोलते हैं, जिसमें यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द एजेंडा दैट यू फील इज इम्पोर्टेंट। ऑन सेकंड डे पे रिजल्ट्स होते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, वहीं आपको आपकी ट्रॉफी और कैश प्राइजेस मिलते हैं, ठीक है। What is yield to the floor मैंने बता दिया है। मैम could you please detail explain your procedure of replying through chits like examples? हाँ, मैं वैसे आपको कल एक एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी, बट अगर किसी ने आपसे चिट पे पूछा कि हाउ मच इज द जीडीपी ऑफ योर कंट्री, ठीक है, तो आपने वही उल्टा उनको रिप्लाई कर दिया कि दिस मच इज द जीडीपी दैट वे, ठीक है। इतने बेसिक क्वेश्चन आते नहीं है, एग्जाम्पल है।
Okay. Mostly questions after the answer I've understood a lot of things are being shared on Instagram. हाँ ठीक है, तो अब आप फॉलो करके वहां पे भी देख लेना, हर जगह जा रही है वन मोर अलायंस। तो देखो क्या होता है ना, लॉट ऑफ डेलीगेट्स हु आर एक्सपीरियंस दे यूज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। वो दोनों ब्लॉक्स में रह लेते हैं, बट एंड में उन लोगों को अगेन सबसे बैकलैश ही मिलता है। तो इट इज बेटर कि आप ऐसे डर्टी प्ले में ना एंगेज करें। इफ यू आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम, हर चीज मेल और कम्युनिटी पे भी आ रही है, ठीक है। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है जब आपको मिस्टेक पॉइंट आउट करनी है, या तो ईबी की या फिर किसी और डेलीगेट की, ठीक है। अभी मैं एक बार ना बिल्कुल एंड में चली जाती हूँ। एंड ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। Okay, my mom is accompanying me to drop, so can she stay? वो we will let you know. We'll have to ask the permission from the school. ठीक है. Ma'am, I choose safe consider to consider. No, it is up to you. आप कोई भी country लो, that does not really define your performance. Mandate is basically powers and functions. प्रगति ने पूछा, ma'am, do we have to make hard copy of our document or can it be handwritten? It can be soft copy also and you can mail it to the email. ठीक है. UNGA Finland का question है, sorry to ask, but can you explain lobbying groups? हाँ, जो हम टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं ना, उस पे आप प्री कमिटी डिस्कशन कर सकते हैं कि मॉडरेटेड कॉकस का क्या टॉपिक होगा, कितने मॉडरेटेड कॉकस करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं लॉबिंग ग्रुप। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जब हम एमयूएन से 3 से 5 दिन पहले वो ओपन करेंगे, तब आप वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। To no, it is not necessary to sit in alphabetical order. Ma'am, can you please tell points of inquiry in just short? Yeah, अगर आपको EV से डाउट पूछना है कुछ भी, तो point of inquiry है. Also, can you explain about 90-second speech? What is it? What to speak? It is a general speakers list जिसमें आप बात कर सकते हैं about anything and everything related to the agenda that you feel is important. Kimaya, you can stop the recording now because it is just doubt clearing and major things have been cleared. Okay. Okay. Yeah.